ਹੈਲੋ ਐਂਡ ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਰੇਸ ਅਕੈਡਮੀ ऑफिशियल। सत श्री अकाल सारे नमस्ते आदाब। सो बहुत ही टाइम बाद, बहुत ही दिनों बाद, बहुत ही चिर बाद मिले आ। PSSB क्लर्क का सिलेबस भी खैर बहुत टाइम बाद आया। सिलेबस की उਡੀਕ सी, बहुत जाने फोन पर कॉल वगैरह करके पुछ लेंदे सी। स्टूडियो की एक्चुअली शिफ्टिंग चल रही सी, इस करके बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। ऑलमोस्ट सारा कुछ फाइनल है, तो आप SSB क्लर्क का भी सिलेबस ऑलमोस्ट यानी कि तुसीं ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਹੀ ਸੀਗਾ। ਬਸ ਹਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਥ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਦਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਬਹੁਤ ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਥ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਉਹ ਵਧੂਗਾ, ਰਾਈਟ ਵੱਧ ਵੀ ਗਿਆ। ਚਲੋ ਖੈਰ GS ਦਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਲਗਭਗ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ। PSSB ਕਲਰਕ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ GK ਦਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਐਰੀਜ਼ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਈਆਂ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਪਟਵਾਰੀ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਪੇਪਰਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ GK ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਲਏ ਸੀ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ GK ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਮਿਸਲੇਨੀਅਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਅੱਡ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰਵਾ ਦੂੰਗਾ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਡੂ ਨੋਟ ਵਰੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਪਾਰਟ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਗਾ, ਯਾਨੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਵੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਦਿਸੂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਉਵੇਂ ਵੀਡੀਓ ਦਿਖੂਗੀ। ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਮੇਰੇ ਮਾਹੌਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਚਲੋ ਖੈਰ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਟਾਰਟ। ਰੇਸ ਅਕੈਡਮੀ ऑफिशियल ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਨਵੇਂ ਆਏ ਆ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਏ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਤੇ ਨਾਲ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਦਬਾ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮਿਲ ਜਾਣ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਚੇਲੇ ਨੇ, ਪੁਰਾਣੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ, ਪੁਰਾਣੇ ਫਰੈਂਡ ਹੈ, ਪੁਰਾਣੇ ਦੋਸਤ ਆ, ਜੋ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਜੋ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਬੇਸਿਕਲੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਕੰਟੀਨਿਊ ਇਸੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਆ ਜਾਓ ਭਾਈ, ਰਾਈਟ। ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਗਰੁੱਪ ਤੁਸੀਂ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਲਿੰਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ, ਰਾਈਟ। ਤੇ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਟਾਰਟ। ਤੇ ਨਾਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਓ, ਅੱਜ ਇਹ 100 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਲਗਭਗ, ਰਾਈਟ। 100 ਤੋਂ ਉੱਤੇ 110-12 ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਣਗੇ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਕਿ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਉੱਤਰ ਲਾਓ, ਕਾਪੀ ਪੈਨ ਚੱਕੋ, ਜੋ ਡਿਟੇਲਸ ਮੈਂ ਨਾਲ ਦੱਸੂਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਲਿਓ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਣਗੇ। ਜਨਰਲ ਨੌਲੇਜ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕਲਰਕ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਪਰ ਹੁੰਦੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕਲੈਰੀਕਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਆ, ਰਾਈਟ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਐਵੇਂ ਹੁੰਦੇ ਸੌਖੇ ਆ। ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਓਬਵੀਅਸ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਐਡਾ ਸੌਖਾ ਪੇਪਰ ਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਜੇ ਨਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਵੇ ਆਪਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਔਖਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਯਾਨੀ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਸੌਖਾ, ਪਰ ਜੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਓਬਵੀਅਸ ਗੱਲ ਆ, ਸਵਾਦ ਤਾਂ ਹੀ ਹੈ, राइट। तो चलो आप करते हैं स्टार्ट। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, बहुत ही सौखे क्वेश्चन है। अच्छा, एक गल होर कि मेरे क्वेश्चन तो कैटेगरी जरूर समझ लेना कि जेकर मैं कैपिटल पहला क्वेश्चन पाया सौखा इवे, तो तुसी जिन्ने भी अपने ऑब्वियस गल स्टेट है, सारे दी जो कैपिटल है उन्होंने तुसी जरूर याद कर लेना हुणे ही, यानी कि नोट कर लो कि एक टॉपिक बन गया कैपिटल। ये मैं करना ही करना। ज़्यादातर मैं तुहानूं इहदे विच टॉपिक कराऊंगा, यानी कि जित्थों तुहानूं पता लग जू कि इहो जिहे क्वेश्चन होर भी आ सकते हैं, ताकि असीं कर लीए, राइट। हो गया। तो बाकी मैं हुण होर बहुत सारे सैशन लाऊंगा, सारे आपां कवर कर ही लवांगे, राइट। हो गया। तो चलो आप पहला क्वेश्चन करते हैं भाई, बहुत ही सौखा। पहला क्वेश्चन की है, वट इज़ द कैपिटल ऑफ मिजोरम। हुण सारिਆਂ ਨੂੰ कोई ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ नहीं कि कैपिटल ऑफ मिजोरम ਦੇ ਵਿੱਚ Z है, तो फिर ਇਹਦਾ मतलब ਐਜ਼ਵਾਲ है, राइट है। ये रट्टा तां लाउणा क्योंकि ਆਪਾਂ ਨੂੰ नॉर्थ ईस्ट ਦੇ जिन्ने भी स्टेट है बहुत ज़्यादा पूछे जाते, इसे करके क्योंकि बहुत मेजोरिटी वाले स्टूडेंट है ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ गलत कर जाते हैं, राइट है। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ याद रखनी है। ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੈਂਗਟੋਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਸਿੱਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਗੁਹਾਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅਸਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਵੈਸੇ ਅਸਾਮ ਦੀ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ कैपिटल ਦੀ ਤਾਂ ਦਿਸਪੁਰ ਹੈ, राइट। हो गया, दिसपुर हो गया। इंफाल है तो मणिपुर है, राइट है। तो ये तुसी याद रखना है, सारे याद रखियो। गुवाहाटी सिटी है, असम, दिसपुर कैपिटल, इंफाल, मणिपुर, गैंगटोक सिक्किम के नाल रिलेट हो गया, राइट। सो इहदा यानी कि आंसर जिहड़ा आ गया की आ गया एजवाल, राइट। हो गया, सौखा। इस तो बाद आ गया तुहाडा वट इज़ द कैपिटल ऑफ अंडेमान निकोबार आईलैंड। देखो स्टेट के नाल यूटियां भी जिन्नियां हैगियां उन्हां दी कैपिटल तुसी जरूर याद रखनी है। अंडेमान निकोबार सौखी है, राइट है, जिमें कि यदी पोर्ट ब्लेयर है, राइट है। इस तरीके तुहानूं लक्षद्वीप की पूछी जा सकती है, लक्षद्वीप हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, राइट है, जां दादरा नगर हवेली हो गया। सो इन्हां सारियां दी जिन्नी भी यूटियां याद करके जरूर जानियां, ठीक है। बाकी इंफाल तुसीं पढ़ ही लिया, ठीक है, हुणे मैं दस के हटिया। मणिपुर नाल दी नाल इन्हां नूं रिपीट करते जाणागा। एजवाल तुसीं हुणे करके हटिओ, तुहाडी मिजोरम दी आ गई। शिमला जिहड़ी हैगी ओह किहदी है, हिमाचल प्रदेश की होगी, राइट है। सौखा ना, इस तरीके क्वेश्चन कर सकते हो। सो पोर्ट ब्लेयर इज द राइट आंसर। इस तो बाद आ गया जी, वेयर आर द हैडक्वार्टर्स ऑफ इंटरनेशनल कमेटी ऑफ द रेड क्रॉस।
ਹੁਣ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ याद करके जाने। लूसेंट की बुक आ तो वो भी एंड के दिता होया, अरिहंत की बुक आ वो भी एंड के दिता होया, स्टैटिक जीके यूनीवर्स अपने वाली बुक आ वो भी तुहानूं हैडकुआटर सारे दिते होया। जिहड़ी मर्जी किताब पर एक ही पढ़िओ, बस एक नूं पढ़ के जाना बार बार, उस तुहानूं पेपरों दे विच आ जाऊगा। जिहड़ी मर्जी बुक चक्को। इंटरनैशनल कमेटी ऑफ द रैड क्रॉस, सो इहदा जिहड़ा हैडकुआटर आ भाई वो कित्थे आ? स्विट्जरलैंड। हुण स्विट्जरलैंड दे विच की आ भला? जनेवा। हुण जनेवा दे नाल जिन्ने भी हैडकुआटर नाल दी नाल उन्होंने याद कर लो, जिमें कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, राइट हो गया। इस तो बाद तुहाडा आ गया वर्ल्ड इंटलैक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। सारे ये याद होने चाहिए। हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, इंटलैक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। सो ये सारे जिहड़े हैगे तुहाडे भाई स्विट्जरलैंड दे नाल रिलेट करदे आ। राइट हो गया। रशिया चाइना दे नाल ADB बैंक अपना, राइट। जापान दे विच भी टोक्यो इहदी कैपिटल, तो बेसिकली इहदे विच भी जिहड़ा हैगा ओह एक UNU है। UNU दा मतलब की है? यूनाइटेड नेशनस यूनिवर्सिटी। ये वही है जिहड़े जिहड़े पूछे गए हैं, राइट है, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली तुहानूं क्वेश्चन है जिहड़े वो रिपीटेड ही होणगे। सो याद रखनागा कि इंटरनैशनल कमेटी ऑफ रैड क्रॉस कित्थे आ? स्विट्जरलैंड, जनेवा, राइट है। जनेवा दे विच वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, मेट्रोलॉजिकल एंड तुहाडा इंटलैक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन हो गया, राइट। सो ये याद रखना भाई। सो इहदा आंसर जिहड़ा आ गया वो स्विट्जरलैंड इज द राइट आंसर। सारा कुछ देख रहे हैं भाई? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, व्हाट इज द करेंसी ऑफ मलेशिया। सो हम टॉपिक की बन जाना चाहिए कि कैपिटल हो गया स्टेट दियाँ, यूटी दे कैपिटल हो गया, इंटरनैशनल ऑर्गेनाइजेशन के जिन्ने हैडकुआटर वो एक टाइटल हो गया, एक टाइटल हो गया तुहाडा करेंसी। करेंसी नाल रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं, जिवें कि मलेशिया, राइट। ये याद किहड़े करने? एक तो करंट अफेयर्स जिहड़ी कंट्री दा जिक्र होंदा रहिंदा गा, ते एक तुसीं मिडल ईस्टर्न कंट्रीज आ बेसिकली उन्होंने याद रखो, ज़्यादातर मुस्लिम कंट्रीज है क्योंकि उत्थों करंसी बहुत पूछी जाती है, राइट। सो चलो मलेशिया की बेसिकली करंसी केड़ी है? डिनार, डॉलर्स है, यूरो है, या रिंगट है। सो मलेशियन रिंगट, राइट। सो ये याद रखना का बहुत इंपॉर्टेंट है, रिंगट। ओके हो गया मलेशिया। इस तो बाद आ गया सार्क। सार्क की फुल फॉर्म किया। हुण जिन्नियां भी इंटरनैशनल ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने या नैशनल, ये तो चलो ठीक है ना, जो नैशनल के भी ईवन के पूछा जाती बहुत सारिया। सो इंटरनैशनल एंड नैशनल जिन्नियां भी ऑर्गेनाइजेशन उन्होंने फुल फॉर्म तुसीं जरूर याद रखनी। ये सारा कुछ मेरी अपनी स्टैटिक जीके वाली बुक आ जिहड़ी मैं टैलीग्राम पर पा रखी है, वो PDF तुसीं वो डाउनलोड कर सकते हो। नहीं लूसेंट है, अरिहंत है, या किसी भी जो इंस्टीट्यूट पढ़ाते हैं उन्होंने बुक जो स्टैटिक वाली होंगी है वो तुहानूं मिल ही जाऊगा, राइट। अपने वाली करनी है डाउनलोड टैलीग्राम तो कर सकते हो। चलो खैर, तो वट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ सार्क। सो सार्क की फुल फॉर्म की है? साउथ एशियन एसोसीएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। ज़्यादातर जी कन्फ्यूजन होगी मेरे हिसाब के कॉरपोरेशन, कोऑपरेशन, रूरल तो नहीं हो सकता, रीजनल कल्चर भी नहीं हो सकता, रीजनल कोऑपरेशन। हुण इत्थे देख लो सिंगल एशियन हैगा नहीं हैगा। सो इहदा मतलब आही है, साउथ एशियन एसोसीएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, राइट हो गया। सो मेरे हिसाब के तुसीं यह चीज़ समझ गए होंगे। हुण सार्क दे नाल रिलेटेड जिहड़ी इन्फॉर्मेशन याद रखनी है, इहदा फाउंडेशन ईयर याद रख लिओ, ठीक है। इहदी फाउंडेशन कदों हुई है? फाउंडेशन उदों हुई है 8 दिसंबर 1985, राइट। ये तुसीं याद रखना कि नाल याद रखना भी फाउंडेशन इहदी कित्थे हुई है, ठीक है। वो हुई है ढाका, यानी कि कैपिटल ऑफ बांग्लादेश। ढाका दे विच इहदी फाउंडेशन हुई है। जे इहदा पूछा जाए तुहानूं हैडकुआटर जिहड़ा हैगा वो हैगा जी काठमांडू, द कैपिटल ऑफ नेपाल, काठमांडू, ठीक है। हुण इहदे विच जिहड़े एसोसीएट कंट्रीज है उन्होंने तुसीं जरूर याद रख लो, हालांकि याद रखने बहुत सौखे है, ठीक है। इहदे विच तुहाडा इंडिया हो गया, इंडिया दे नाल ही तुहाडा पाकिस्तान लगदा, पाकिस्तान दे नाल ही तुहाडा की लगदा अफगानिस्तान, ठीक है। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया। हुण इंडिया दे इधर की है? नेपाल है, नेपाल हो गया, मालदीव हो गया, मालदीव्स, ठीक हो गया। मालदीव्स याद रख लेना, श्रीलंका याद रख लो, भूटान याद रख लो, तो बांग्लादेश याद रख लो, राइट। यानी जो गुआढ़ी देश आ बस उन्होंने याद रखना, वो सार्क के मैंबर हो जाएंगे। इतों तक दस रहे हैं एंड तक?
दिस रहा ठीक है सो अफगानिस्तान पाकिस्तान इंडिया नेपाल भूटान श्रीलंका बांग्लादेश मालदीव सारे याद रख लेने मेरे हिसाब के नाल तुसीं इन्हां नूं कदे भी नहीं भुल्लोगे राइट हो गया सो ये याद रखने सार्क की फुल फॉर्म होगी सार्क के फाउंडेशन ईयर हो गया ओके इस तो बाद आ गया द पीरीयड ऑफ द फर्स्ट 5 ईयर प्लान ਹੁਣ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਉਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੈਸੇਜ ਆ ਜਾਂਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਕਾਲ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਿ ਸਰ ਸਾਨੂੰ ਐ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਸਕਦੇ ਆਹੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਪੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਲਝ ਜਾਂਦੇ ਆ ਰਾਈਟ ਤਾਂ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਾ ਅੱਜ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਸੈਸ਼ਨ ਹੀ ਹੈ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸੈਸ਼ਨ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲਾਉਂਦਾ ਹੀ ਰਹੂੰਗਾ ਰਾਈਟ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲਣਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਫਸਟ 5 ਈਅਰ ਪਲਾਨ ਵਾਸ ਸੋ ਫਸਟ 5 ਈਅਰ ਪਲਾਨ ਆਪਣਾ 1951 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 56 ਤੱਕ ਹੋਇਆ ਹੁਣ ਤਾਂ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਹੈ ਬੇਸਿਕਲੀ ਰਾਈਟ ਹੈ ਸੋ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ ਭਾਈ ਸੋ 1951 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1956 ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟਸ ਆ ਬੇਸਿਕਲੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਆ ਦੇਖੋ ਫਸਟ 5 ਈਅਰ ਪਲਾਨ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਭਾਈ 1951 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 56 ਤੱਕ ਹੈ ਰਾਈਟ 1951 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 56 ਤੱਕ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 56 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 61 ਤੱਕ ਹੋ ਗਿਆ ਰਾਈਟ ਹੈ 61 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 66 ਹੈ ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਗੈਪ ਸੀਗਾ ਬਿਟਵੀਨ ਦਾ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਮਿਸ਼ਨਸ ਰਾਈਟ ਜਿਹੜੇ 5 ਈਅਰ ਪਲਾਨ ਸੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਗੈਪ ਕਦੋਂ ਆਇਆ ਬਿਟਵੀਨ 3rd 5 ਈਅਰ ਪਲਾਨ ਐਂਡ 4th 5 ਈਅਰ ਪਲਾਨ यानी 66 तो बाद 1966 तो बाद सीधा देखो 1969 तो लैके फिर 74 तक है 1969 तो लैके 74 तक है फिर पंजवां भी ठीक है 74 तो लैके तो जोड़ा हो गया 79 हो गया फिर एक गैप हो रहा है 80 तो 85 है 85 तो 90 है फिर गैप आ जाता 92 तो 97 97 तो 2002 है ये तुम जरूर याद रखना है क्योंकि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ठीक है इन्हों तो क्वेश्चन तुम्हें पूछे जा सकते हैं ये 9th हो गया इस तरीके तुम याद रख सकते हो जो तो 10वां तो 11वां रह गया ये भी याद रख लो ठीक है 10वां तो 11वां 10वां हो गया तो 2002 तो लैके 7 तक 11वां हो गया 2007 तो लैके 12 तक 12वां हो गया 2012 तो लैके 2017 तक इस बाद फिर नीति होगा ठीक है सो बेसिकली कहने का मतलब मेरे कहने का मतलब सिर्फ इन्ना का कि हुण रट्टा तो लग नहीं सकता सिर्फ तुसी की याद रखना पहला दूसरा तीसरा चौथा पंजवां इस तो बाद अपने पता लग जू कि पंजवां 1979 है फिर 1980 तो 85 है यानी 1 साल का गैप पा लो बस ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੇਕਰ ਗੈਪ ਪਾਉਣਾ ਤਾਂ ਤੀਸਰੇ ਤੋਂ ਚੌਥੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਯਾਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕੀਤੀ ਹੋਊਗੀ ਰੱਟਾ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖੋ 1951 ਤੋਂ 56 ਫਿਰ 56 ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ 5 ਸਾਲ 61 ਫਿਰ 61 ਤੋਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ 66 ਆ ਜਾਂਦਾਗਾ हाँ उस तो बाद 3 सालों का गैप पा लो फिर 69 तो 74 आ जाऊगा फिर 74 तो 89 आ जाऊगा फिर एक गैप पा लो फिर 80 तो 85 आ जाऊगा इस तरीके के फिर 85 तो 90 आ जाऊगा फिर 90 तो बाद 91 तो 92 वाला गल 91 या 92 की होनी है राइट गिपी गरल देना सो 92 तो फिर 97 है इस तरीके से याद रखोगे तो ज़्यादा वधिया रहूगा 97 2002 2007 फिर उस तो बाद लगातार ही है राइट हो गया सो गैप वाले याद रख लो बाकी तो सौखा ही है 5-5 साल जोड़ने हैं राइट हो गया नैक्सट आ गया भाई फर्स्ट इंडियन प्रोडक्ट टू गैट GI टैग GI टैग की होंगे अपना जियोग्राफिकल इंडिकेशन GI टैग बेसिकली उस नाम तो फिर होर किते नहीं सीधी जी गल अपनी विलक्षणता जिन्हों कहते होंगे भी अपने शहर की एक विलक्षणता तुहानूं दिसूगी सो फर्स्ट इंडियन प्रोडक्ट जो GI टैग बेसिकली मिलेगा वह की है भाई दार्जिलिंग टी 2004 के राइट सो ये याद रखना गा बहुत सारिया हूँ तो लगभग 300 प्लस है जो GI टैग मिले हुआ जिहदे बासमती राइस भी है राइट है तुहाडी बनारसी साड़ी भी है चलो खैर तो फर्स्ट इंडियन प्रोडक्ट टू गैट GI टैग जियोग्राफिकल इंडिकेशन फुल फॉर्म जरूर याद रख सकते हो वैसे सौखा ही है पूछा नहीं जाऊगा दार्जिलिंग टी इज द राइट आंसर नैक्सट आ गया वट इज द फुल फॉर्म ऑफ UIDAI ये देखा तो लगता है क्योंकि आधार कार्ड जो भी तुम देखते हो तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ UID यानी कि ਤੁਹਾਡਾ यूनीक आइडेंटिफिकेशन ਜਿਹੜਾ नंबर ਹੁੰਦਾ बेसिकली ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਸੋ ਇਹਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਕੀ ਹੈ UIDAI यूनिफाइड नहीं हैगा यूनिवर्सल नहीं हैगा यूनाइटेड नहीं हैगा यूनीक है राइट यानी यूनीक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया राइट सो एसोसीएशन विद आधार सो ये फुल फॉर्म बहुत बार पूछी जाती है आए बार इनू बहुत जाने गलत करते अज तो बाद गलत ना करो सो यदा यानी कि फुल फॉर्म याद रखो यूनीक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया ओके हो गया नैक्सट आ गया हु कंप्यूट्स द नैशनल इनकम इन इंडिया सारे क्वेश्चन है रिपीटेड है बहुत बार पेपर के आते हैं नैशनल इनकम कौन बेसिकली उसनू देखता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनांस है सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन है RBI है या नन ऑफ दिस CSO सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन राइट सो ये तुसीं याद रखनी है भाई
ठीक है। सो स्टैट्स बेसिकली ये देखती है नैशनल इनकम। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जेकर पहली बार पूछा जाता होंगे क्वेश्चन कि पहली बार अपनी नैशनल इनकम किने देखी सी या नैशनल इनकम किने कढ़ी सी अपनी पहली बार, जेकर आप बिफोर पार्टीशन ऑफ इंडिया देखिए तो 1867-68 सब तो पहला बाय दादा भाई नेहरू जी, दादा भाई नेहरू जी द्वारा की गई सी सब तो पहला। जे आप आफ्टर यानी कि इंडिपेंडेंस देखिए 1949 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ प्रोफैसर PC महालनोबिस, तो फिर पहली बार इन्हों, ठीक है। सो सब तो पहली बार 1867-68 बाय दादा भाई नेहरू जी। सो ये तुसी जरूर याद रखना, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन CSO computes the national income in India. What is the currency of Iran? What is the currency of Iran? What is the currency of Iran? सो मैं दसिया सीगा कि करंसी जिमें मलेशिया की आई है, तो ज़्यादातर जो तुहानूं मिडल ईस्टर्न एशिया ਜਿਹੜੇ बेसिकली ईस्टर्न कंट्रीज़ आ उन्होंने तुहानूं ज़्यादा मिलूगी। सो करंसी ऑफ ईरान इरानियन रियाल, इरानियन रियाल इज़ द राइट आंसर। बस ये तुसीं याद रखने, हुण याद तो प्रैक्टिस दे नाल ही होणगे, राइट। होर कुछ नहीं, इहदा हल ईरान। वट इज़ द सिंगिंग टाइम ऑफ राग भैरव? कुछ पिछले टाइम तो कुछ टाइम तो देखा जा रहा कि बहुत सारे स्टैटिक पोर्शन के हुण रागां बारे भी पूछण लग गए। हालांकि रागां बारे तो मैनूं लगदा नहीं भी पूछना चाहिए, बट फिर भी स्टैटिक जीके के तौर पर इन्होंने पूछण लग गए कि किहड़ा राग किहड़े वेले गाया जाता, जे किहड़े राग दे नाल किहड़ा बंदा एसोसीएट करदा गया, इस तरीके के आर्टिस्ट दे पूछे जाते हैं, राइट है। सो यह तुसीं याद रखना भाई, भैरव राग है, भैरव राग जिहदे विच बोल मिट्टी का बावा भी गाया जाता, राइट है, काफ़ी जने गाउंदे आ। सो मॉर्निंग टाइम भैरव राग, ठीक है। सो ये भाई भैरव राग है जिहड़ा तुहाडा मॉर्निंग टाइम ते बेसिकली गाया जाता। सो ये तुसीं याद रखने। होर भी राग बहुत है, जिवें कि तुहाडा जिहड़े कि पुछे गए आ पिछले टाइमां दे विच, सारंग जिहदे विच मुल्तानी राग है, मुल्तानी राग यह नून यानी आफ्टरनून गाया जाता है, राइट है, तुसीं याद रख लो। एक भोपाली राग है, भोपाली राग जिहड़ा कि ईवनिंग टाइम गाया जाता है। सो मॉर्निंग ईवनिंग आफ्टरनून ये सारे याद कर लो। मॉर्निंग वाला तुहाडा राग भैरव है, ठीक है, मॉर्निंग टाइम हो गया। नून हो गया तुहाडा सारंग मुल्तानी हो गया। भोपाली राग है जिहड़ा वो ईवनिंग हो गया। सो याद रख लो भाई। इस तो बाद आ गया तुहाडा भाई विच इज़ द क्लासिकल डांस ऑफ केरला। क्लासिकल डांस है, तुहानूं इत्थे पिक्चर भी दिस रही है, क्लासिकल डांस ऑफ केरला। क्लासिकल डांस भी तुसीं सारे याद रखने हैं। ज़्यादातर तो मैं करा ही दूंगा अज ही जिन्हों के पूछे जाते हैं, पर फिर भी तुसीं रिवीजन के तौर पर बाकी भी करके जाने ने, राइट है। सो क्लासिकल डांस ऑफ केरला, केरला 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 जेकर आज तो फिर केरला कली, कली याद रखना, ठीक है। कथक कली, कथक कली इज़ द जो क्लासिकल डांस ऑफ केरला, राइट है। एक केरला के नाल होर भी रिलेटेड होंदा कि मोहनी अत्यम, मोहनी अत्यम याद रखना। कथक है जिहड़ा तुहाडा यूपी, हालांकि कथक तो क्वेश्चन पूछा जाता होंदा भी किहड़ी स्टेट दे विच इह ओरिजिनेट होया, जां ओरिजिनेट तो वैसे नॉर्थ इंडिया दे विच ही होया पूरा, बट फिर भी हुण यूपी ज़्यादातर कथक देखा जाता है। भारत रत्न तुहाडा हो गया तमिलनाडु, ते कुचिपुड़ी है जिहड़ा तुहाडा इह आंध्र प्रदेश हो गया, राइट है। ये सारे याद रखने वाले आ, गल्लां बातां इन्हां च कख नहीं, बट उही गल है भी रैपीटिशन दे विच कमी है, तो जे रिपीट भी करके याद नहीं हो रहे तो सिर्फ फिर कमी है डिस्कशन दे विच। किसी नाल डिस्कशन कर लो, किसी तो पूछ लो, किसी को दस दो, फिर भी याद रहते, कोई ना कोई लिंक बना लो, फिर भी याद रहते हैं, राइट है। कथक कली हो गया, कली केरला, कथक यूपी हो गया, भारतनाट्यम तमिलनाडु हो गया, एंड कुचिपुड़ी जिहड़ा हो गया आंध्र प्रदेश हो गया। सो ये याद रखना, यानी ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ आंसर आ जाऊगा भाई वो आ जाऊगा ਤੁਹਾਡਾ कथक कली, राइट है। हुण ਇਹਦੇ ਨਾਲ रिलेटेड ਜਿਹੜੀ चीज़ है एक बहुत इंपॉर्टेंट है ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ मैं दस देना ਇੱਥੇ, राइट। आह तुसीं जरूर ही नाम याद रख लेने, राइट। आ नाम तुसीं जरूर याद रख लियो क्योंकि यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि इत्थों क्वेश्चन पूछे जा सकते। ये सारा कुछ तुहानूं अपने स्टैटिक जी के यूनीवर्स के मिल जूगा, ठीक है। वो तुसीं डाउनलोड जे करनी है कर लियो, मैंने तो की है, बाकी लूसेंट के भी तुहानूं मिल जाएंगे, ऐसी कोई गल नहीं, रिहंत के भी मिल जाएंगे। डांस हो गया कथक कली, राइट है। कथक कली तुहाडा केरला के इन्हां दे नाम नाल जिहड़े पूछे गए हैं हुण तक, जिवें कि रागनी देवी, रागनी देवी पूछा गया कि
ਇਹ ਆਰਟਿਸਟ ਕਿਹੜੇ ਡਾਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ? ਸੋ ਕਥਕਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ। ਗੋਪੀਨਾਥ ਰਾਘਵਨ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ, ਰਾਈਟ ਹੈ। ਰੀਤਾ ਗਾਂਗਲੀ, ਸ਼ਾਂਤਾ ਰਾਓ, ठीक है, कृष्णा नायर, ये तुसीं याद रख सकते। कथक हो गया तुहाडा जिहड़ा नॉर्थ इंडिया दे विच ओरिजिनेट होयागा। इहदा तां बहुत बार पूछा जाता बिरजू महाराज। बिरजू महाराज कथक दे नाल रिलेटेड है। उमा हुण इह उलझ जांदे। बिरजू महाराज तुहानूं कथक भी दे देणगे, कथक कली भी दे देणगे, फिर उत्थे ऑप्शन दे विच आपां कथक कली लाए होणे। बिरजू महाराज तुहाडे कथक हो गए, उमा शर्मा हो गया, सितारा देवी हो गई, शंभू महाराज, ये सारे याद रखने, बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट हो गया भाई। इस तो बाद नैक्सट आ गया तुहाडा विच स्टेट इज एसोसीएटेड विद सत्रिया डांस। सत्रिया, हुण सत्रिया डबल टी आ गया तो फिर डबल एस नाल याद रखो, तो नाल इहदे आसे पासे ला दो ए, असम। राइट है। सत्रिया डांस जिहड़ा हैगा तुहाडा भाई ये किहड़ी स्टेट दा हैगा गा? असम दा। बस ये तुसीं याद रखना, होर की चीज़ां रहिंदियां गईयां इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो असम दा याद रखना गा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो नाल तुहानूं मैं होर 4-5 जिहड़े हैगे ओह जरूर याद करा देना। आ देख लो भाई, क्लासिकल डांस तो कथकली हो गया, केरला आप कर ही लिया। आ तो मोहनी अत्यम भी नाल ही दसता सी मैं, जोड़ा कि केरला दे। भारतनाट्यम तमिलनाडु हो गया, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश हो गया, कथक हो गया उत्तर प्रदेश हो गया, उड़ीसी तो उड़ीसा हो गया, मणिपुरी मणिपुर के रिलेटेड है, सत्रिया असम के रिलेटेड है। हुणे तुसीं स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हो, बहुत ज़्यादा सौखा गा, कुछ भी ये नहीं हैगा। राइट होगा। सो ये तुसीं याद रखने ने। सत्रिया डांस इज एसोसीएटेड विद असम। ओके हो गया। नेक्स्ट आ गया विच ऑफ द फॉलोइंग फोक म्यूजिक बिलोंग टू द स्टेट ऑफ राजस्थान। सो राजस्थान के नाल केड़ा भाई फोक जिहड़ा हैगा म्यूजिक रिलेटेड है? राइट है, मांड। डी ऑप्शन आ गया, मांड। राइट है। सो याद रखना, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। मांड फोक म्यूजिक है। राइट है। पवाड़ा भी बहुत बार पूछा गया। पवाड़ा हैगा महाराष्ट्र के नाल रिलेटेड, महाराष्ट्र। राइट। आह बाउल भी पूछा गया, बाउल हैगा बंगाल के नाल रिलेटेड, बंगाल के नाल, ठीक है। वनावन जिहड़ा हैगा भाई यह किहदे नाल रिलेटेड है? कश्मीर के नाल रिलेटेड है। राइट। सो ये तुसीं चीज़ां याद रखनियां ने, स्क्रीनशॉट नाल दी नाल, ते जां फिर इन्हां दी मैं PDF बना के भी पा सकदा। राइट। टैलीग्राम इंस्टॉल कर लो, ज्वाइन कर लो ग्रुप का, उत्थे मैं PDF इहदी पा दूँगा। राइट हो गया। मैं पूरा श्योर है कि इन्हां दे विचों क्वेश्चन तुहानूं पक्का टक्करनगे, क्योंकि हुण तक प्रीवियस जिन्ने भी पेपर आए जो आपां कीता ऑब्वियस गल आ ओह पेपरां दे विच आई आया। राइट। सो पवाड़ा हो गया महाराष्ट्र हो गया, वनावन हो गया तुहाडा कश्मीर, बाउल बंगाल, मांड हो गया तुहाडा राजस्थान। नैक्सट आ गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डांस फॉर्म ऑफ मेघालय। सो मेघालय की डांस फॉर्म केड़ी है? लाहो, चिरा, दलखई एंड रंगमा। सो ये भी जो आजूगा वह आजूगा जी लाहो। लाहो डांस फॉर्म ऑफ मेघालय। बेसिकली जेकर तुसीं इहदा नाम किते ना किते होर पढ़िया होगा तो पढ़िया होगा चिपिया। चिपिया डांस भी इनू कहा जाता है, जे याद रखना गा। वैसे लाहो याद रख लो, चिपिया याद रख लो, इको गल है। राइट हो गया चिपिया। इस तो बाद मेघालय के नाल होर रिलेटेड एक डांस है जिहड़ा कि इसे तरह का ही है, वांगला, जां इसे नूं ही कहा जाता, ऐ कह सकते हो, ठीक है। सो लाहो, चिपिया, वांगला याद रख लेना भाई। सो ये राइट आंसर बन गया। ये होर इंपॉर्टेंट की बनता है? चिरा भी ये याद रखना तो रख लो, ये तुहाडा मिजोरम के नाल रिलेटेड है। दलखई है जिहड़ा ये उड़ीसा के नाल रिलेटेड है। राइट है। तो जिहड़ा आह गा रंगमा ये नागालैंड के नाल रिलेटेड है। एक होर पूछा जाता नागालैंड तो क्वेश्चन कि किहड़ी स्टेट है जिहदी ऑफिशियल लैंगुएज इंग्लिश है? नागालैंड, ठीक है। सो ये क्वेश्चन भी पूछा गया, ऑफिशियल लैंगुएज, ठीक है। सो ये चीज़ां आप सारियां याद करके जानिया, वेरी इंपॉर्टेंट। राइट हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासिकल डांस फॉर्म्स ओरिजिनेटेड इन नदरन इंडिया। आ गया क्लासिकल डांस जिहड़ा ओरिजिनेट होया नॉर्थ इंडिया दे विच। कथक, कथक, कथक पहले नंबर ते पिया। भारतनाट्यम हुण बार याद करने की लोड़ नहीं पैनी। तमिलनाडु आ गया, मोहनी अत्यम तुहाडा, केरला आ गया, कुचिपुड़ी तुहाडा आ गया भाई आंध्र प्रदेश। सो ये तुसीं वार इन्हों रिपीट करते रहे हो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा कथक कित्थे सीगा बना? नॉर्थ इंडिया के चलो ओरिजिनेट होया है कित्थे आ? यूपी। इस तो बाद आ गया जी सिद्धेश्वरी देवी। सिद्धेश्वरी देवी वाज अ लीडिंग आर्टिस्ट ऑफ सिद्धेश्वरी देवी। इन्हों की पुत्री आ, उन्होंने तो भी क्वेश्चन पूछा गया। सविता देवी,
ਸਬਿਤਾ ਦੇਵੀ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ ਹੁਣ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਬਿਤਾ ਦੇਵੀ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੁਣ ਇਹ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਸੀ, ਓਬਵੀਅਸ ਗੱਲ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਸਿद्धੇਸ਼ਵਰੀ ਦੇਵੀ ਵਾਜ ਲੀਡਿੰਗ ਆਰਟਿਸਟ ਆਫ ਠੁਮਰੀ। ਠੁਮਰੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਹੋ ਸਰਦੂਲ ਸਿਕੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੋ ਠੁਮਰੀ ਗਾਉਂਦੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਦੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਸਾਬਰਕੋਟੀ ਸਾਹਿਬ ਠੁਮਰੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਸੁਣ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਕਦੇ ਸਰਚ ਦੇਖਿਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਆ, ਠੁਮਰੀ ਬਾਏ ਸਾਬਰਕੋਟੀ ਸਾਹਿਬ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦੇਖਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਾਸਟਰ ਸਲੀਮ ਵਰਗੇ ਹੋ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਠੁਮਰੀ, ਸੋ ਸਿद्धੇਸ਼ਵਰੀ ਦੇਵੀ ਵਾਜ ਲੀਡਿੰਗ ਆਰਟਿਸਟ ਆਫ ਠੁਮਰੀ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਕੀ ਹੈ ਡਾਟਰ ਸਬਿਤਾ ਦੇਵੀ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਗਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਰਿਲੇਟਡ ਆ, ਸੋ ਇਹ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਆ ਭਾਈ, ਸੋ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਠੁਮਰੀ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਗਿਆ ਦ ਵਾਰ ਸੌਂਗ ਆਫ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਆਰ ਕਾਲਡ ਆਫ ਫੋਲੋਇੰਗ। ਸੋ ਜੋ ਬੈਟਲਸ ਬੇਸਿਕਲੀ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਬੈਟਲਸ ਜਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬੇਸਿਕਲੀ ਵਾਰ ਸੌਂਗਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬੇਸਿਕਲੀ, ਵੀਰ ਜਿਹਨੂੰ ਸੌਂਗ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਵਾਰ ਸੌਂਗਸ ਆਫ ਨਾਗਾਲੈਂਡ, ਸੋ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਦਾ ਵਾਰ ਸੌਂਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਹੇਰੇਲਿਓ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ILEU ਲੱਗ ਦਿੰਦਾ ਉਹ ਵਾਰ ਸੌਂਗਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਿਲੇਟਡ ਹੁੰਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੀਰੇਲਿਓ, ਵਾਰ ਸੌਂਗਸ ਆਫ ਨਾਗਾਲੈਂਡ, ਰਾਈਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਾਕੀ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਹੀ ਦਿੱਤਾ, ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਇੰਗਲਿਸ਼, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਵਿਚ ਫੇਮਸ ਮਜੀਸ਼ੀਅਨ ਇਜ਼ ਬਲੀਵਡ ਟੂ ਹੈਵ ਇਨਵੈਂਟਡ ਦਾ ਤਬਲਾ। ਤਬਲਾ ਦੀ ਖੋਜ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਆਉਂਦਾ, ਤਾਨਸੇਨ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਗਾਲਿਬ, ਆਮਿਰ ਖੁਸਰੋ ਜਾਂ ਫਾਇਜ਼ ਅਹਿਮਦ ਫੈਜ਼, ਰਾਈਟ। ਤਬਲਾ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਤਾਰ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਆਨਸਰ ਆਮਿਰ ਖੁਸਰੋ। ਸੋ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਭਾਈ, ਆਮਿਰ ਖੁਸਰੋ। ਸੋ ਦਾ ਤਬਲਾ ਐਂਡ ਸਿਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਆ। ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਆਮਿਰ ਖੁਸਰੋ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਕੁਐਸਚਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਦਾ ਗੰਧਾਰ ਸਕੂਲਸ ਆਫ ਆਰਟ, ਦਾ ਗੰਧਾਰਾ ਸਕੂਲ ਆਫ ਆਰਟ। ਹੁਣ ਗੰਧਾਰ ਸਕੂਲ ਬਾਰੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ, ਆਪਾਂ ਐਂਸ਼ੀਅੰਟ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਗੰਧਾਰ ਸਕੂਲ ਆਫ ਆਰਟ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਕਿਸ ਤੋਂ ਸੀ? ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਬਾਏ ਦਾ ਆਰਟ ਫਰੋਮ ਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਯੂਰਪੀਅਨ ਕੰਟਰੀ, यानी किसी ना किसी तो आप प्रभावित होने। सो जो गंधार स्कूल ऑफ आर्ट सी बेसिकली वाज इन्फ्लुएंस बाय द आर्ट फ्रॉम विच यूरोपियन कंट्री। सो बेसिकली कित्थों सीगे जिथे सब तो पहला ओलंपिक होया, ग्रेसो रोमन आर्ट कह दें उन्होंने अपना, इस तो बहुत प्रभावित सी। एंड ये किहड़ी यूरोपियन कंट्री के नाल रिलेटेड होगा, ऑब्वियस गल है ग्रीस के नाल रिलेटेड होगा। सो याद रखना गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय यूरोपियन कंट्री, विच यूरोपियन कंट्री ग्रीस। नेक्स्ट आ गया द आगा खान पैलेस इज लोकेटेड। द आगा खान तुसी नाम बहुत सुनिया होगा। आगा खान पैलेस इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ, आगा खान पैलेस जिहड़ा हैगा भाई वो तुहाडा कित्थे आ, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, केरला, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र इज द राइट आंसर। सो ये याद रखना। आगा खान जिथे तुसी सुनियागा बिल्कुल याद सही कर रहे हो, जे कर रहे हो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग द वन ऑफ द फाउंडर्स, राइट। आगा खान याद रखना, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग दे फाउंडर, ठीक है। सो आगा खान पैलेस इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। महात्मा गांधी जी दी जिहड़ी वाइफ सी उन्हां दा नाम की सीगा, कस्तूरबा। कस्तूरबा ते जिहड़े उन्हां दे पर्सनल सैकरेटरी सी, पर्सनल PA पर्सनल असिस्टेंट, उन्हां दा असिस्टेंट उन्हां दा नाम की सीगा भाई महादेव दसाई, महादेव दसाई, राइट। सो यानी ये सारे ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ आगा खान पैलेस ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਐਂਡ ਈਵਨ ਕਿ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਸਤੂਰਬਾ ਯਾਨੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਲਸੀ ਦੇ ਪੱਤੇ ਵਗੈਰਾ ਉੱਥੇ ਸਮਥਿੰਗ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਟੌਂਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਐਪੀਟੈਫ, ਰਾਈਟ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮਿਲ ਜੂਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਸੀ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ, ਕਸਤੂਰਬਾ, महादेव सहित दसाई। सो याद रखने सारे, राइट। सो आगा खान पैलेस इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, राइट हो गया। इस तो बाद आ गया जी बोट रेस इज पार्ट ऑफ विच फैसटिवल। कुछ फैसटिवल होंगे जिन्हों के नाल रिलेटेड कुछ गेमां होंगे, राइट। सो बोट रेस इज द पार्ट ऑफ विच फैसटिवल, पोंगल, ओनाम, बिहू जां नवरात्रि। सो पोंगल जेकर आप देखिए तो किहड़े दे नाल रिलेटेड है भाई, ये तमिलनाडु दे विच हारवेस्ट, ठीक है। सो उस तो बाद आ गया तुहाडा ओनम जिहड़ा कि केरला दे विच है, एंड यही इहदा राइट आंसर है, राइट। सो बोट रेस जिहड़ी हैगी भाई ओनम दे नाल रिलेटेड है, एंड कित्थे है,
केरला राइट है। बिहू तो बहुत वार पूछा जाता है, बिहू असम हो गया, ठीक है। नवरात्रि नॉर्थ इंडिया के विच, हुण यूपी कह लो भावें तुसीं इधर हरियाणे कन्नी कह सकते हो राइट है। चलो खैर, बोट रेस इज द पार्ट ऑफ विच फेस्टिवल की आ गया तुहाडा असम इज द सॉरी ओनम इज द राइट आंसर। ओनम केरला, केरला दे विच राइट। सो स्टेट भी पूछा जा सकता, फेस्टिवल भी पूछा जा सकता, सो दोनों याद तुसीं रखने। द प्लेइंग टाइम ऑफ नैशनल एंथम, द प्लेइंग टाइम ऑफ नैशनल एंथम, नैशनल एंथम की है जन गण मन, जन गण मन राइट। सो इहदा जिहड़ा यानी कि टाइम है वह कितना है भाई 52 सैकंड, कई बार ऑप्शन के 48 तो 52 सैकंड भी लिखा होता, सो वो भी याद रख सकते हो 48 तो 52 सैकंड, ठीक है। बाय रविंद्रनाथ टैगोर, सबनों पता है राइट है। जन गण मन है जो सब तो पहला यह कदों गाया गया सीगा, 1911 के गाया गया सी, किहड़े सैशन के गाया गया सी, कलकत्ता सैशन के गाया गया सी राइट है। सो ये तुसीं याद रखना है, जन गण मन राइट हो गया। जन गण मन दे नाल तुसीं यानी नैशनल एंथम के नाल तुसीं याद रख सकते हो नैशनल सॉन्ग, नैशनल सॉन्ग बंकम चंद्र चट्टोपाध्याय राइट है। नैशनल सॉन्ग आ जिहड़ा वो भी तुहाडा पहली बार 1896 के गाया गया सीगा, वो भी कलकत्ता सैशन के ही गाया गया सी। चलो खैर गल्लां बातां। सो 52 सैकंड का राइट आंसर आ गया, सो याद रखना गा। इस तो बाद आ गया जी मिनीएचर पेंटिंग्स इन इंडिया वाज स्टार्टड बाय, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है थ्रैटिकल पोर्शन के भी मैं पढ़ाना होंगे। सो मिनीएचर पेंटिंग्स जड़ियाँ हुई बेसिकली स्टार्ट हुई गए हुमायूं द्वारा। जे पॉपुलर देखिए जान पेंटिंग्स तो जहांगीर के द्वारा पॉपुलर किए गए सी, हु पॉपुलराइज्ड द पेंटिंग इन मुगल अंपायर राइट। सो किने की सी, जहांगीर द्वारा बहुत ज़्यादा पॉपुलर किया गया राइट है। बट हुमायूं द्वारा ये चीज़ां स्टार्ट की गई सी। जेकर तुसीं इहदा प्रूफ भी देखना होवे तो हुमायूं दी कोर्ट दे विच नाम सीगे दो, सैयद अली, सैयद अली एंड अब्दुस समद, अब्दुस समद, ये दोनों ही तुसीं कह सकते भी कोर्ट दे विच स्पैशल इसे वैकेंसी पोस्ट वास्ते रखे गए राइट। सो मिनीएचर पेंटिंग्स इन इंडिया वाज स्टार्टड बाय हुमायूं, कोर्ट दे विच सैयद अली एंड अब्दुल समद, तुसीं यह याद रख सकते हो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मिनीएचर पेंटिंग्स राइट हो गया भाई। नैक्सट क्वेश्चन, इस तो बाद आगे गीतांजलि इज अ कलैक्शन ऑफ पोएम्स बाय। सो गीतांजलि भी बहुत बार पूछा जाता, गीतांजलि, गीतांजलि बाय रविंद्रनाथ टैगोर, चलो आंसर ही ला लो, ठीक है। रविंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर दे पापा जी का नाम सीगा दविंद्रनाथ टैगोर, दविंद्रनाथ टैगोर पूछ लिया जाता कई बार, दविंद्रनाथ टैगोर। ये दविंद्रनाथ टैगोर जोड़े सीगे ये लीडर सीगे किहड़े दे, ब्रह्मो समाज के, ये भी याद रख लो, ब्रह्मो समाज के यह लीडर सी, ठीक है। रविंद्रनाथ टैगोर साहब नूं नोबल प्राइज़ मिलिया लिटरेचर दे विच कदों, फस्ट नोबल लॉरीएट ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਭਾਈ ਇਹ ਕਦੋਂ ਦੇ ਆ 1913, ठीक है। सो ये मेरे हिसाब के बहुत चीज़ां गल्लां बातां वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सो गीतांजलि इज अ कलैक्शन ऑफ पोएम्स बाय रविंद्रनाथ टैगोर, याद रखना है राइट हो गया। इस तो बाद आ गया जी वेयर इज द कोणार्क सन टैंपल, कोणार्क सन टैंपल नूं यूनेस्को वर्ल्ड हैरीटेज दे विच पाया गया बाय यूनेस्को। कोणार्क सन टैंपल कित्थे यह सिचुएटेड करता है, सो केदारनाथ उड़ीसा मदुरई या तिरुपति या इसका आंसर आ गया उड़ीसा। सो याद रखना कोणार्क सन टैंपल यूनेस्को द्वारा 1984 के बेसिकली इहनूं जिहड़ा कीता गया राइट हो गया। सो ये चीज़ां तुसीं याद रख सकते हो। होर इहदे नाल की याद रखना गा, कोणार्क सन टैंपल बस इन्ना याद रख लो, होर की याद रखना, हाँ याद रख लो जी रखना तो नरसिम्हा वर्मन किहदे द्वारा बनाया गया, नरसिम्हा वर्मन फस्ट द्वारा राइट है। सो ये याद रख सकते हो, ठीक है। होर की याद रखना गा, बस यही याद रखना, ठीक है। एक ब्लैक पगोड़ा ये याद रखना, ऑल्सो नोन एज राइट है। चलो क्या हो गया, ठीक है भाई। सो ये सारी चीज़ां पढ़िया हुई, सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ब्लैक पगोड़ा भी कई बार आ जाता है, इसे का नाम ही है राइट हो गया। सो वेरी इंपॉर्टेंट। नैक्सट क्वेश्चन, भारतनाट्यम इज क्लासिकल डांस ऑफ रिपीटेड, भारतनाट्यम तमिलनाडु, तमिलनाडु। हुण जे उल्टा दसना हो, देखो आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश तो की सी भला कुचिपुड़ी, उत्तर प्रदेश तो की सी भला कथक, केरला तो की सी कथक कली ते नाल मोहिनीअट्टम, ठीक है। सो ये सारे तुसीं याद रखने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तो बाद अगर जी विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया इज पॉपुलर फॉर
कलमकारी प्रिंट, कलमकारी यानी हैंडीक्राफ्ट्स ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ आ, कलमकारी प्रिंट ਦੇ ਨਾਲ which of the following states of India is popular? तमिलनाडु, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश। सो आंध्र प्रदेश इज द राइट आंसर। ਇਹੋ ਜਿਹੇ क्वेश्चन पढ़े होण ਤਾਂ आंसर लग जाते हैं, ना पढ़े होण ਤਾਂ आंसर नहीं लगता। अज पढ़ लिया, जे आ गया तो आंसर ला देना है। कलमकारी प्रिंट। इस तो बाद आ गया जी मधुबनी पेंटिंग। बहुत बार पूछा जाता, आपनू तुहानू पता होगा। मधुबनी पेंटिंग उत्तर प्रदेश ते जां फिर बिहार इज द राइट आंसर। बस ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत। मधुबनी पेंटिंग। नेक्स्ट आ गया, हाँ, टेंपल है कंदारिया महादेव टेंपल, लोकेटेड एट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। ठीक है, सो याद रखना भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु। मध्य प्रदेश इज द राइट आंसर। मध्य प्रदेश इनू कहा जाता है द ग्रेट गॉड ऑफ द केव, द ग्रेट गॉड ऑफ द केव। कंदारिया महादेव, द ग्रेट गॉड ऑफ द केव, मध्य प्रदेश दे विच। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट टेंपल होगा। ठीक है, कंदारिया महादेव टेंपल। विच स्टेट इज एसोसिएटेड विद सत्रिया डांस? सत्रिया डांस डबल टी है तो फिर डबल ए ला दो, तो इधर ला दो ए, यानी असम। ओके भाई, चलो ठीक हो गया। नैक्सट क्वेश्चन आ गया भाई तुहाडा, पंचतंत्र वाज ओरिजिनली रिटन बाय। शेर आया वाली कहानी सुनी होगी पंचतंत्र दे विच, आओ छोटे होंदे पढ़ते आए हो। सो पंचतंत्र वाज ओरिजिनली रिटन बाय कालीदास, विष्णु शर्मा, तुलसीदास या फिर रायदास। सो विष्णु शर्मा इज द राइट आंसर, जिन्होंने पंचतंत्र लिखी है। सो याद रखना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ईवन कि मैं पहला भी जो हिस्टरी के मॉक टेस्ट करवाए सी, उदों भी यही क्वेश्चन आए सी। सो विष्णु शर्मा इज द राइट आंसर। ठीक हो गया भाई। इस तो बाद कालीदास है, कालीदास के नाल रिलेटेड जिहड़ा तुसीं याद रख सकते हो, अभिजनन शकुंतलम, अभिजन शकुंतलम। स्पैलिंग थोड़े बहुत इधर हो सकते हैं। सो कालीदास, अभिजन शकुंतलम, ये बहुत बार पूछा जाता है। राइट है। होर याद रख लो, मेघदूत भी बहुत बार पूछा जाता है। रघुवंशा, कालीदास द्वारा सारा कुछ। ठीक है, तो इस तो बाद विष्णु शर्मा द्वारा पंचतंत्र हो गया। तुलसीदास द्वारा पूछा जाता होंदागा रामचरितमानस। हाँ, रामचरितमानस, तुलसीदास, इसे याद रखने। ठीक है, बहुत बार आते हैं। रामचरितमानस हो गया, विष्णु शर्मा मेघदूत, सॉरी विष्णु शर्मा द्वारा तो पंचतंत्र, ये कालीदास हो गया, अभिजन शकुंतलम, मेघदूत हो गया, रघुवंशा हो गया। ठीक हो गया भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया जी, वेयर इज द नोंक्रेम डांस फेस्टिवल बीइंग सेलिब्रेटेड? सो नोंक्रेम डांस, सो ਇਹਦਾ ਕੀ आंसर आ जाऊगा भाई? नोंक्रेम डांस मेघालय इज द राइट आंसर। मेघालय इज द राइट आंसर। मेघालय के नाल रिलेटेड आप याद रख लें, लाहो, वांगला, चिपकिया। सो याद हो गए। ठीक है, सो याद रखना भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हू डिस्कवर्ड द सी रूट टू इंडिया? सौखा देखो, जेडे जेडे पढ़े हुए हो तो उही आउंदे आ। राइट, हू डिस्कवर्ड सी रूट टू इंडिया? वास्को डी गामा। 1498 पहली बार भारत ये आया। दूसरी बार भारत कदों आया? 1502 दे विच। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता। पुर्तगाली सीगा हू डिस्कवर्ड द सी रूट टू इंडिया। राइट हो गया। कोलंबस है जिहड़ा कि अमेरिका, राइट है। तो जिहड़ा तुहाडा मैगेलन है, मैगेलन बेसिकली इहने जिवें कहंदे हुंदे भी एक धरती गोल है, बेसिकली एक जगह तो लैके नैवीगेटर राਹੀਂ दूसरी जगह तक, ये एक जगह तो लैके आए घूमदा दूसरी जगह तक पहुंचा सीगा, यानी कि सेम जगह पर आ गया तो धरती गोल हो गई एक तरीके नाल, ज़्यादा छड्डो पर है। ठीक है ना। सो ये मैं वो पढ़ाया हुआ नैब तहसीलदार वगैरह। राइट है, चलो खैर। तो वास्को डी गामा इज द राइट आंसर, बेसिकली इन्ना याद रखो। राइट, वट इज 2.5 दिन का झोंपड़ा? सो 2.5 दिन का झोंपड़ा बेसिकली की है? मॉस्क्यू है, टेंपल है, सेंस हट है या टावर है? सो मॉस्क्यू है 2.5 दिन का झोंपड़ा। राइट है, मॉस्क्यू। राइट, सो याद रखना है।
अजमेर, 2.5 दिन का झोंपड़ा। ठीक है, स्लेव सीगा जिन्हें बनवाई सी कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, सो 2.5 दिन का झोंपड़ा 2.5 दिन ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਬੇਸਿਕਲੀ, याद रखियो। ठीक है, सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस तो बाद आ गया जी, अच्छा यह कुतुब मीनार, उत्थे बेसिकली कुतुबुद्दीन ऐबक के नाल कुतुब मीनार भी याद रखियो, कई बार वो भी एसोसीएट पूछा जाता। इस तो बाद आ गया जी, व्हाट इज द फेमस अलाई दरवाजा बिल्ट बाय अलाउद्दीन खिलजी लोकेटेड। सो फेमस अलाई दरवाजा, अलाई दरवाजा हुण नाम तो ही जिमें पता लगता होगा अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है ना, सो ये तो चलो दिता ही होएगा, बट फिर भी इन्ना याद रखना, अलाई दरवाजा किहदे द्वारा बिल्ट किया गया, अलाउद्दीन खिलजी, इन्ना भी तुसीं याद रखना है। राइट है, अलाउद्दीन खिलजी कित्थे है, आगरा, दिल्ली, अवध या रंगल, यह है भाई दिल्ली। उही कुतुब मीनार आप पढ़ के हटे, कुतुब मीनार के अंदर ही तुहानूं अलाई दरवाजा मिल जूगा। राइट है, तो कुवैत उल इस्लाम, राइट है, ये तुसीं याद रख सकते हो, इन कुतुब मीनार। राइट है, जिहड़ा हैगा कुवैत उल इस्लाम। राइट हो गया। अलाउद्दीन खिलजी है जिहड़ा भाई ये सन इन लॉ सीगा जलालुद्दीन, जलालुद्दीन दा तुसीं फिल्म देखी हो अलाउद्दीन खिलजी, उदों जलालुद्दीन सीगा उहदा प्राहुणा ही सीगा। राइट है, जिहड़ा हैगा भाई तुहाडा जलालुद्दीन। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी, सो दिल्ली याद रख लो, कुवैत उल इस्लाम याद रख लो। ठीक है, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक हो गया भाई, चलो ठीक हो गया। चलो एक क्वेश्चन होर पूछा जाता अलाउद्दीन खिलजी तो कि पहला किहड़ा मुस्लिम सुल्तान सी जिन्हें साउथ ते कब्जा कर लिया सी, या साउथ कनी कूच कर लिया सी, अलाउद्दीन खिलजी। ये याद रख लो, क्वेश्चन पूछा जाता होता। इस तो बाद आ गया जी, केविन सिस्ट्रोम एंड माइक क्रिजर आर द फाउंडर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। केविन सिस्ट्रोम एंड माइक क्रिजर, मैं पासे ता ही होना भाई, स्क्रीनशॉट ले लिया करो। ठीक है ना, कई जाने कहते होंगे भी स्क्रीनशॉट लेने होंगे। ठीक है, सो चलो, केविन सिस्ट्रोम एंड माइक क्रिजर आर द फाउंडर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। सो व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, सो इसका आंसर आ जाऊगा जिहड़ा इंस्टाग्राम आ जाऊगा। इंस्टाग्राम बेसिकली 2010 ਦੇ ਵਿੱਚ आई सी एंड 2012 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ फेसबुक ने एक्वायर कर लिया। फेसबुक का फाउंडर कौन है, मार्क जकरबर्ग, ये तो पता ही हो सारे। राइट, सो बाकी व्हाट्सएप जिहड़ा हैगा भाई ਇਹਦਾ याद रख लो, ऑक्टन, ऑक्टन है ये स्पैलिंग मेरे हिसाब नाल आई है, याद रख लो, शायद ACTON, ब्रेन ऑक्टन समथिंग कुछ हैगा। व्हाट्सएप के फाउंडर नाम जो ऑप्शन पिया होंदा उदों याद आ जाता। राइट, जिमें ट्विटर है, हुण ट्विटर जिमें मान लो मेरे दिमाग दे विच ये हैगा एक तो डोजरी, राइट, स्टोन, ग्लास। ठीक है, हुण देख लो, डोजरी यानी शीशे के रिलेटेड हो गया, स्टोन हो गया, ग्लास हो गया, ये सारे आ। हुण इन्हां दे नाम जो ऑप्शन के आउणगे मेरे याद रह जाणगे, यानी जे ट्विटर के फाउंडर पूछे जान। राइट, ये मूहरे जैक लगता, जैक डोजरी। ठीक है, ये मूहरे भी कुछ लगता कि शायद बेज स्टोन समथिंग लाइक दैट, नूआ ग्लास, नवा ग्लास, नवा ग्लास, एवें भी याद अपने आप रह जाता। नवा ग्लास हो गया, बेज स्टोन हो गया, जैक डोजरी हो गया, ये ट्विटर के फाउंडर है बेसिकली। राइट हो गया। सो व्हाट्सएप के हो गया ब्रेन एक्टन। ब्रेन एक्टन के नाल भी एक होर है, याद कर लो मेरे हिसाब के, उसका नाम हैगा के तो है समथिंग, JK, जैक समथिंग, जैन पता नहीं कॉम समथिंग कुछ है। ठीक है, सो सर्च करके देख लो एक बार। ठीक हो गया भाई। सो इत्थे इंस्टाग्राम के फाउंडर बेसिकली केविन सिस्ट्रोम एंड माइक क्रिजर। इस तरीके के तुसीं लिंक्डइन देखोगे, ये भी तुहानूं फाउंडर जिहड़े वो मिल जाएंगे, ब्लू रेड एम समथिंग कुछ हैगा, READ, एक ब्लू है। ठीक है, एवें जी कुछ समथिंग नाम है, ब्लू तो हैगा पक्का, मूहरे उहदे विच की लगदा गा, एवें याद रहंदे कुछ ना कुछ, वो चक लो जितों ऑप्शन तो तुहानूं देखण नूं मिल जाए। ठीक है, सो इंस्टाग्राम 2010 2012 दे विच एक्वायर कर लिया फेसबुक ने, हालांकि व्हाट्सएप भी जी एक्वायर हुई भी हुण तां जी हैगी फेसबुक का। ठीक है, सो ये सारी चीज़ां इंपॉर्टेंट बनदियां ने। हू बिल्ट चार मीनार एट हैदराबाद, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। चार मीनार किहदे द्वारा,
ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਬਿਲਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਰਾਈਟ। हैदराबाद ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾਗਾ, इब्राहिम कुतुब शाह, कुली कुतुब शाह द्वारा यानी कि ਇਹ ਬਣਾਈ गई है, राइट। कुली कुतुब शाह, ठीक है। चार मीनार, राइट, चार मीनार, सो कुली कुतुब शाह, राइट। ये आर्कीटैक्ट पूछे जाते होंगे जिन्हों का नाम है जी मीर मोमिन अस्त्रवादी, राइट। मीर मोमिन, बस मीर मोमिन याद रख लो, ये आर्कीटैक्ट है, राइट। एंड जो चार मीनार है, जो लास्ट क्वेश्चन पूछा गया लेटेस्ट बिल्कुल PSTCL समथिंग वो पूछा गया, PSPCL के पूछा गया क्वेश्चन आया सी, मैंने किसी ने दसिया सी, रिवर मूसी किहदे कंढे पाया जाता, कुली कुतुब शाह दे द्वारा बनाया, ठीक हो गया। हैडकुआटर ऑफ द कॉफी बोर्ड ऑफ इंडिया, पढ़िया तो ला सकते हो, नहीं तो फिर यह छड्डना पै सकता गा, पढ़ लिया अज तो बाद भुलियो ना। सो भाई कॉफी बोर्ड ऑफ इंडिया बेंगलुरु इज़ द राइट आंसर, उधर साउथ के कॉफी बहुत ज़्यादा है, सो उधर ही यदा हैडकुआटर है। हु अमंग द फॉलोइंग इज फेमस रुद्रवीणा प्लेयर, सो रुद्रवीणा प्लेयर संतूर हो गया, फ्लूट हो गया, सरोद हो गया, सो ये तुसी सारे याद रखने ने, राइट। सो फॉलोइंग द फेमस रुद्रवीणा प्लेयर, सो यदा जो आंसर आ जाऊगा असद अली खान, हुण सपोरी है, भजन सपोरी, सो इन्हां तो याद रख लो संतूर, ठीक है। पन्ना लाल घोष है, वेरी इंपॉर्टेंट, फ्लूट, ठीक है, फ्लूट हो गया तो तुहाडा अलाउद्दीन खान है भाई, ये सारोद के नाल रिलेटेड है, ठीक हो गया। सो भजन सपोरी, संतूर, असद अली खान इज़ द राइट आंसर, जिहड़ा कि रुद्रवीणा प्लेयर के नाल रिलेटेड ने। नैक्सट आ गया भाई सांची स्तूपा वाज बिल्ट बाय, बहुत इंपॉर्टेंट, सांची स्तूपा इज इन मध्य प्रदेश, राइट। मध्य प्रदेश, बिंबिसार, राजा भोज या अशोका तो या फिर कनिष्का, सो इसका जो आंसर आ जाऊगा भाई वो आ जाऊगा अशोका इज द राइट आंसर। सांची स्तूपा मध्य प्रदेश के कितने है, रायसन डिस्ट्रिक्ट के, भी पूछ लिया जाता कई बार, अजकल कुछ भी पूछा जा सकता है, राइट। हुण अशोका के नाल रिलेटेड कर लो गल्लां, मौर्यन डायनेस्टी के नाल रिलेटेड, द फेमस रूलर मौर्यन डायनेस्टी, राइट। सो अशोका तो होर भी क्वेश्चन पूछा जाता भी किहड़ी धर्म दे विच कन्वर्ट हो गए सी आफ्टर कलिंगा वार, बुद्धिज़्म, उस दे नाल रिलेटेड सांची स्तूपा इज रायसन डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश, राइट हो गया। सो ये तुसी याद रखना है, ओ क्योंकि हाँ सच ये भी यूनैस्को हैरीटेज साइट है, राइट। यूनैस्को हैरीटेज साइट सांची स्तूपा, जिमें कि आप पहला भी पढ़ियागा सन कोणार्क टैंपल उड़ीसा, राइट। लेटेस्ट यूनैस्को ने हैरीटेज साइट जिहड़ा डिक्लेयर किया 2021 दे विच, तुसीं करंट अफेयर पढ़िया होगा, जो कि अपनी सिविलाइजेशन के रिलेटेड है, धौलावीरा सुनिया होगा, धौलावीरा गुजरात, राइट। एक टैंपल भी सुनिया होगा रामपपा टैंपल, ये कित्थे अपना तेलंगाना, सो इन्हों यूनैस्को 2021 के यानी कि पाया गया, राइट हो गया। सो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट अचीवमेंट, राइट। सो सांची स्तूपा वाज बिल्ट बाय जिहड़ा हैगा भाई वो तुहाडा अशोका हो गया, रायसन डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश, याद रखना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इंडिया पहली नेशनल यूनिवर्सिटी फॉर स्किल डिवेलपमेंट विल बी सैटअप इन द स्टेट ऑफ, इंडिया की पहली जो स्किल डिवेलपमेंट, नैशनल स्किल डिवेलपमेंट बेसिकली जो सैटअप किया गया, नैशनल यूनिवर्सिटी कितने, उत्तर प्रदेश, बिहार इज़ द राइट आंसर, ठीक है, बिहार इज़ द राइट आंसर पहली। जे आप ईस्टर्न साइड देखिए कि ईस्टर्न साइड केड़ी है पहली, ईस्टर्न साइड हैगी है असम, राइट है। जे पहली ओपन यूनिवर्सिटी देखनी हो स्किल डिवेलपमेंट ते ओपन यूनिवर्सिटी तो फिर केड़ी है, हैदराबाद। ये क्वेश्चन उदों करवाए थे जो एक्साइज इंस्पैक्टर का पेपर सीगा, एक्साइज इंस्पैक्टर पेपर के तो चलो जिमें कहते होंगे भी स्किल वो तो स्पैशल सिलेबस ही दिता होया सी, पर ठीक है क्वेश्चन पूछा जा सकता है, राइट। वो क्वेश्चन करवाए थे स्किल डिवेलपमेंट के रिलेटेड। सो फर्स्ट स्किल डिवेलपमेंट बिहार हो गया, ईस्टर्न के असम हो गया, ओपन यूनिवर्सिटी हैदराबाद हो गया, सो ये तुसी याद रखना है। नैक्सट आ गया जी, विच फ्रीडम फाइटर वाज गिवन द ऑनरेरी टाइटल ऑफ लोकमान्य, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, नाम ही याद होगा है ना, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक इज द राइट आंसर।
सो इन्होंने भाई यह टाइटल मिलेगा, राइट है। जे इन्हों का ओरिजिनल नेम पूछा जाए, ओरिजिनल नेम तो की है केशव गंगाधर, पूछा जा सकता है केशव गंगाधर। इन्हों फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट भी कहा जाता है, राइट है। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ होम रूल मूवमेंट, होम रूल लीग जड़ी सी बेसिकली, राइट है, मूवमेंट कह लो, होम रूल लीग सी जी बेसिकली 1916 के विच ਉਹਦੇ संस्थापक भी बाल गंगाधर तिलक है। हालांकि एनी बेसेंट भी है जिन्होंने बाद में बनाई, जी कि मोस्ट पॉपूलर भी हुई, राइट है। सो बाल गंगाधर तिलक याद रखना, इन्हों के होम रूल लीग के टाइम ते ही बेसिकली इन्हों नाम लोकमान्य रखा गया द टाइप, ठीक है। द फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट बाल गंगाधर तिलक। बाकी लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल, ये सारे एक्सट्रीमिस्ट सी। जो 1907 के सूरत सैशन होया, सूरत स्पलिट जिन्होंने आप कहने हैं, राइट। एक्सट्रीमिस्ट जोड़े मॉडरेटर से वख-वख हो गए सी। चलो खैर गर्म दली सी बेसिकली, राइट हो गया, ओके। नैक्सट क्वेश्चन आ गया भाई, हिल पैलेस म्यूजियम इज लोकेटेड इन। सो याद रख लो बस, हिल पैलेस, जिमें अगा खान पैलेस याद रखा महाराष्ट्र के उस तरीके हिल पैलेस म्यूजियम भी याद रख लो कितने भाई, केरला। हुण केरला याद किया तो नाल दी नाल रिपीट कर लो, कथकली एंड मोहिनीअट्टम, ठीक हो गया, मोहिनीअट्टम। सो याद रख लो हिल पैलेस म्यूजियम। इस तो बाद आ गया था एंशियंट नालंदा यूनिवर्सिटी। क्या बात है, नालंदा यूनिवर्सिटी अपनी एंशियंट सब तो तकड़ी यूनिवर्सिटी सी, किहदे द्वारा फाउंड की गई, कुमार गुप्ता फर्स्ट, सिकंद गुप्ता, कुमार गुप्ता सैकंड या नरसिम्हा गुप्ता, कुमार गुप्ता फर्स्ट द्वारा यह नालंदा यूनिवर्सिटी बिहार बेसिकली बनाई गई, राइट है। नालंदा यूनिवर्सिटी जी हैगी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट, जिवें तुसीं कह सकते हो एक स्कूल एजुकेशन जो ये तुहानूं देखण नूं मिलदी है। एंशियंट नालंदा यूनिवर्सिटी जी हैगी वो बर्बाद, डिमोलिश किहने कीती है, डिमोलिश किहने कीती है, ये क्वेश्चन भी पूछा गया। तो तुसीं जे याद रखना गा तो डिमोलिश्ड बाय बख्तियार खिलजी, बख्तियार खिलजी द्वारा इनू डिमोलिश कर दिता गया सी, लाइब्रेरी बिल्कुल ढाती सी उन्होंने, ठीक है। सो द एंशियंट नालंदा यूनिवर्सिटी वाज फाउंडेड बाय कुमार गुप्ता। विच सिटी वाज फाउंडेड बाय कृष्णा देवाराय, कृष्णा देवाराय द्वारा केड़ी सिटी है जी फाउंड की गई, रंगला, नागलपुरा, उदयगिरी या फिर चंद्रगिरी, राइट। सो नागलापुरा, इन्हों की मदर सी जिन्हों का नाम सीगा नगला देवी, उन्होंने नाम ते ही है नागलापुरा। याद रख लो बस इन्ना ही, किहड़ी सिटी बनाई गई है, विजयनगर अंपायर तो याद ही होगा, विजयनगर उहदे नेड़े ही है नागलापुर, ठीक है। सो ये सिटी उन्होंने द्वारा जी बनाई गई, कृष्णा देव राय, ओके हो गया भाई। वेयर इज सतीश धवन स्पेस सेंटर सिचुएटेड, सतीश धवन स्पेस सेंटर सिचुएटेड। सो भाई याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वेयर इज सतीश धवन स्पेस सेंटर, यह हैगा भाई बंगलुरु, तुहाडा विशाखापट्टनम, न्यू दिल्ली, श्री हरिकोटा। हाँ, यदा नाम जो पहला सीगा वो श्री हरिकोटा रेंजर भी सी यदा नाम, बाद दे विच 1971 दे विच यानी कि दी एस्टैबलिशमेंट हुई है। 2002 दे विच बाय अटल बिहारी वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा जो इन्हों का नाम रखा गया, रीनेम किया गया सतीश धवन स्पेस, यानी उन्होंने नाम से सतीश धवन स्पेस सेंटर सिचुएटेड एट श्री हरिकोटा। पहले इन्हूं श्री हरिकोटा रेंजर के नाम नाल ही जाना जाता सी। सो याद रखना गा बाय अटल बिहारी वाजपेयी 2002 के किया गया, ठीक हो गया भाई, वेरी वेरी गुड। इस तो बाद आ गया लाला लाजपत राय वाज द फाउंडर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एंट्री, पंजाब केसरी नाम नाल जाना जाता गा, पंजाब केसरी, राइट है। लाला लाजपत राय तो यह फाउंडर मन्ने जाते। पहला खाता इन्हों का पंजाब नैशनल बैंक लाहौर के खुलिया सी, हालांकि यदा अज जो हैडकुआटर हुण तो पार्टीशन हो गई, तो यदा हैडकुआटर जोड़ा है न्यू दिल्ली है, ठीक है। सो लाला लाजपत राय पंजाब केसरी इन्हों
ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਗਾ, ਰਾਈਟ ਹੈ। ਸੋ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਹੈ ਇਹਦੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ 1894 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ ਬਾਏ ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਰਾਈਟ ਹੋਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਗਾ। ਇੱਕ ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਕੁਛ यानी ये एडिटर रहे हैं कुछ न्यूज़पेपर दे, राइट। एक तो वंदे मातरम दे, एक द पीपल। सो ये तुसी याद रखना। सो पंजाब केसरी नाम दे नाल जाने जाते हैं, शेरे पंजाब भी कहा जाता है, शेरे पंजाब। शेरे पंजाब के नाम नाल होर कौन जाने जाते हैं, महाराजा रणजीत सिंह भी जाने जाते हैं, राइट हो गया। सो याद रखना लाला लाजपत राय पंजाब नैशनल बैंक। द प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी इम्पीच्ड फॉर वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर विच आर्टिकल। कुछ आर्टिकल्स जोड़े बहुत इंपॉर्टेंट बनते हैं, हालांकि पॉलिटी के लैक्चर मैं सारे लाए हुए हैं, जे किसी ने देखना तो प्ले लिस्ट जाके पॉलिटी के 3-4 लैक्चर वो सारे देख लो, क्वेश्चन नहीं कोई मरदा थोड़ा, राइट। द प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी इम्पीच्ड फॉर वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जेकर वायलेशन करते कॉन्स्टिट्यूशन का तो प्रेजिडेंट को इंपीच किया जा सकता। इंपीच का मतलब हटाया जा सकता, राइट है। सो केड़ा आर्टिकल है भाई, आर्टिकल 52, 61, 74, 78। सो आर्टिकल 61 52 जोड़ा है प्रेजिडेंट की अपॉइंटमेंट के नाल रिलेटेड है, यानी प्रेजिडेंट होंदा है, प्रेजिडेंट की सीट आर्टिकल 52 डेफिनेशन दिंदा गा। आर्टिकल 61 दे विच इंपीचमेंट है जिहड़ी कि प्रेजिडेंट द्वारा की जा सकती है। इनीशिएट किहदे द्वारा की जाती है, इनीशिएट किसी द्वारा भी की जा सकती है, आइदर हाउस ऑफ द पार्लीमेंट, यानी आइदर हाउस ऑफ द पार्लीमेंट का मतलब की है कि चाहे लोक सभा स्टार्ट करे चाहे राज्य सभा स्टार्ट करे, जो भी स्टार्ट करूगा पहला 1/4 साइन चाहिए हाउस दे, जो लोक सभा स्टार्ट करता तो 1/4, फिर राज्य सभा के जाऊगा तो फिर 2/3 मेजोरिटी चाहिए, राइट। उमें इंपीच किया जाता है। हालांकि तुसी आर्टिकल याद रखना, आर्टिकल 61 याद रखो। नैक्सट क्वेश्चन आ गया, विच अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रिलेट्स टू एंटी डिफेक्शन लॉ। एंटी डिफेक्शन लॉ 1985 बाय 52nd अमेंडमेंट, 52nd अमेंडमेंट राही एंटी डिफेक्शन लॉ लेके आता गया, ठीक है। सो याद रखना, विच अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंटी डिफेक्शन लॉ 52वीं अमेंडमेंट है भाई। सो याद रखना, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तो बाद आ गया जी, पंचायती राज एक्ट केम इनटू एग्जिस्टेंस परसुएंट टू डैश कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। सो पंचायती राज हो गया, म्यूनसिपैलिटी हो गया, दोनों ही याद रखना 73 ते 74, राइट। सो पंचायती है 73 के नाल, यानी यदा आंसर 73 है। 74 के नाल जिहड़ा तुहाडा हैगा म्यूनसिपैलिटी, म्यूनसिपैलिटीज़, राइट है, तुसीं वो याद रखना गा। सो भाई 73वीं अमेंडमेंट यानी कि 74वीं 73वीं दोनों याद रखने, 1992 नाल जरूर याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। पंचायती राज एक्ट एंड पंचायती राज के नाल आर्टिकल केड़ा रिलेटेड है भाई, आर्टिकल 40, ये भी याद तुसी रखना है, राइट हो गया। शेड्यूल केड़ा गा, शेड्यूल हैगा 11वां ते 12वां, ये भी याद रखना। पार्ट केड़ा गा, पार्ट 9वां, ये भी याद रखना। चलो खैर, इस बाद आ गया आर्टिकल 76 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद। आर्टिकल 76 केड़े नाल डील करदा गा, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया, अमेंडमेंट प्रोसीजर, स्पैशल स्टेटस ऑफ जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर का स्पैशल स्टेट तो हम हट गया, तो सबनों पता हो गया, तो मशहूर है सब तो, 370 हो गया। अमेंडमेंट प्रोसीजर 368 हो गया, जिहदे राहीं आपां अमेंडमेंट कर सकते हैं। एडवोकेट जनरल हो गया तो अटॉर्नी जनरल हो गया। हुण आर्टिकल 76 जिहड़ा तुहाडा अटॉर्नी जनरल दे नाल रिलेटेड, अटॉर्नी जनरल का मतलब होंदा सरकार का वकील, हाईएस्ट लॉ ऑफिसर है बेसिकली, अपना पहले रैंक का ऑफिसर है, लॉ ऑफिसर है बेसिकली। अटॉर्नी जनरल यानी कि सरकार का जिहड़ा एडवोकेट होंदा गा। तो जेकर उही स्टेट सरकार का हो, जिवें पंजाब सरकार, बिहार सरकार का हो या यूपी सरकार का, स्टेट दे विच जिहड़ा हुंदा गा वो हाईएस्ट लॉ ऑफिसर किहड़ा हुंदा गा, एडवोकेट जनरल, यानी कि एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट हो गया, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हो गया, राइट है। सो यह हो गया आर्टिकल 76 के नाल रिलेटेड, आ हो गया आर्टिकल 165 के नाल रिलेटेड। सो दोनों याद रखने, एडवोकेट भी पूछा जा सकता, अटॉर्नी भी पूछा जा सकता। इस तो बाद आ गया विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन्स द मनी बिल। मनी बिल ऑब्वियस गल है, या तो लोक सभा या लोक सभा नहीं, सिर्फ लोक सभा, ओनली लोक सभा दे विच मनी बिल है जिहड़ा इंट्रोड्यूस हुंदा गा। मनी बिल कौन दसदा कि यह मनी बिल है या नहीं, वो दसदा गा स्पीकर ऑफ द लोक सभा, स्पीकर ऑफ द लोक सभा। सो केड़ा आर्टिकल है जिहड़ा मनी बिल नूं बेसिकली डिफाइन करदा, आर्टिकल 114, आर्टिकल 112, आर्टिकल 116, आर्टिकल 117,
110 108 ਆਰਟੀਕਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜੁਆਇੰਟ ਸਿਟਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ। ਜੁਆਇੰਟ ਸਿਟਿੰਗ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਫਲਿਕਟ ਹੁੰਦਾ ਜੁਆਇੰਟ ਸਿਟਿੰਗ ਬੈਠਦੀ ਹੈ। ਜੁਆਇੰਟ ਸਿਟਿੰਗ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬੁਲਾਉਂਦਾਗਾ। ਪ੍ਰੀਸਾਈਡ ਕੌਣ ਕਰਦਾਗਾ? ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਸਪੀਕਰ ਹੀ ਕਰਦਾ, ਚੇਅਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਜੁਆਇੰਟ ਸਿਟਿੰਗ ਦਾ? ਉਹ ਹੁੰਦਾਗਾ ਸਪੀਕਰ ਆਫ ਦਾ ਲੋਕ ਸਭਾ। ਬਟ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਕੌਣ ਹੈ ਉਸਨੂੰ? ਸੱਦਦਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਸੰਮਣ ਕੌਣ ਕਰਦਾ? ਉਹ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ। 108 ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 110 ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੀ ਬਿੱਲ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਉਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਬਜਟ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ? 112, ਰਾਈਟ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਆਰਟੀਕਲ 371A ਆਫ ਦਾ ਇੰਡੀਅਨ ਕॉन्स्टिट्यूशन इज अबाउट विच ऑफ द फॉलोइंग। आर्टिकल 371A स्पेशल प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू स्टेट ऑफ नागालैंड, पावर ऑफ द प्रेसिडेंट टू अडॉप्ट लॉज, पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड कॉन्स्टिट्यूशन एंड प्रोसेस फॉर इट। नहीं, स्पेशल प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू स्टेट ऑफ नागालैंड 371A। सो 370 तो बाद जो आप 370 पढ़ते हैं जम्मू कश्मीर के स्पैशल प्रोविजन से जोड़ा कि हट चुके 371 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਵਾਲੇ ਕੰਟਰੀ ਜਾਂ ਟ੍ਰਾਈਬਲ ਏਰੀਆ, ਸ਼ਡਿਊਲਡ ਏਰੀਆ ਜਾਂ ਫਲਾਣਾ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਸੋ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਦ ਸਟੇਟ ਆਫ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਜੇਕਰ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ 371A ਆ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ 371B ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ, ਰਾਈਟ। 371I ਯਾਦ ਰੱਖੋ, I ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਵੀ ਹੈ, ਮਣੀਪੁਰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ। जो आए हुए मैं दस ते बाकी तुसीं पढ़ सकते हो। सो 371A है जोड़ा नागालैंड के नाल, B है जोड़ा आसाम के नाल, I है जोड़ा गोवा। ये बहुत बार रिपीट होंगे, सो याद रख सकते हो, ठीक हो गया। नैक्सट क्वेश्चन आ गया जी, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गिव्स द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। आर्टिकल 12 तो लेके आप 35 तक पढ़ते हैं। एक मिनट, आर्टिकल 12 तो लेके आप 35 तक बेसिकली पढ़ते हैं फंडामेंटल राइट्स। तो आर्टिकल 12 पढ़ते हैं डेफिनेशन ऑफ स्टेट, एंड आर्टिकल 13 के आप पढ़ते हैं जुडिशियल रिव्यू, राइट। जुडिशियल रिव्यू किहड़े आर्टिकल के फिर आर्टिकल 13, ठीक है। जो कोई फंडामेंटल राइट में वायलेट करता तो जुडिशियल रिव्यू हो सकता है, नल एंड वॉइड करार दिता जा सकता। इस तो बाद आगे विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट अमेंडेड द एज ऑफ वोटिंग फ्रॉम 21 तो 18। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਵੋਟ ਯਾਨੀ ਕਿ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਲੱਸ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਅਡਲਟ ਫਰੈਂਚਾਈਜ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਬੇਸਿਕਲੀ, ਸੋ 21 ਤੋਂ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਹੜੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਰਾਹੀਂ ਇਹ 21 ਤੋਂ 18 ਸਾਲ ਉਮਰ ਕੀਤੀ ਗਈ? 61ਵੀਂ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਸੀਗੀ, 61st ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ 1999, ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਸੋ 61st। नेक्स्ट आ गया जी, विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट गेव प्रेसिडेंस टू डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी ओवर फंडामेंटल राइट्स। बहुत सोहना क्वेश्चन पर यह आया हुआ। डायरेक्टिव प्रिंसीपल नूं फंडामेंटल राइट तो उपर रखा गया किहड़े कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट राही एक्ट किया गया। सिंपल जी गल है, इंदिरा गांधी की सरकार सी तां डायरेक्टिव प्रिंसीपल की है? डायरेक्टिव प्रिंसीपल हैगी सरकार दी ड्यूटियां, तो फंडामेंटल राइट की है? लोगों के अधिकार है। तो सरकार दी ड्यूटियां ज़्यादा ओवर उपर है फंडामेंटल राइट तो किने यानी कि कीता सीगा इंदिरा गांधी सरकार ने। एंड इंदिरा गांधी सरकार वेले अमेंडमेंट सब तो वड्डी किहड़ी हुई है? 42वीं अमेंडमेंट। 42वीं अमेंडमेंट हुई है 1976 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਨੂੰ मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। सो याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो 42वीं अमेंडमेंट। इस तो बाद आ गया जी, हाँ बस होर याद रखना, रख लो भी किहड़ी कमेटी बनी सीगी, ठीक है ना, स्वर्ण सिंह कमेटी, याद रखना, रख लो। इस तो बाद आ गया जी, डैश ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ डील्स विद, यानी कुछ आर्टिकल किहदे नाल रिलेटेड है। आर्टिकल 40 कहते फंडामेंटल ड्यूटी के नाल रिलेटेड है। गलत है ना, फंडामेंटल ड्यूटी 51A दे विच है, तो पार्ट किहड़ा है? पार्ट 4A दे विच है, राइट। फंडामेंटल ड्यूटीज आर्टिकल 51A दे विच है, यानी गलत हो गया। आर्टिकल 45 यूनीफॉर्म सिविल कोड के नाल रिलेटेड है, नहीं, यूनीफॉर्म सिविल कोड के नाल आर्टिकल 44 रिलेटेड है। इस तो बाद आ गया आर्टिकल 40 ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत, जिहड़ा कि बिल्कुल राइट है। आर्टिकल 48 के नाल नहीं, यूनीफॉर्म सिविल कोड आर्टिकल 44 के नाल, ठीक है। सो आर्टिकल 40 ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत इज द राइट आंसर, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया जी, विच आर्टिकल डील्स विद द ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ द गवर्नर, ठीक है ना। सो जिहड़ा ऑर्डिनेंस दे नाल डील करदा गा
मेकिंग पावर ऑफ द गवर्नर यानी कि आर्टिकल दे विच आर्टिकल 200 आर्टिकल 213 आर्टिकल 161 आर्टिकल 167 जेकर आप आर्टिकल 161 की गल करिए तो आर्टिकल 161 जी पावर रखता है पार्डनिंग पावर ऑफ गवर्नर जोड़ा आप कहते हैं भी गवर्नर को माफ़ करने का पावर होंगी है पार्डनिंग पावर ऑफ गवर्नर राइट। हालांकि फांसी सिर्फ प्रेजिडेंट ही करता है गवर्नर नहीं कर सकता गा राइट। पार्डनिंग पावर जो आर्टिकल 161 राही हो गया राइट। एंड यदा ऑर्डीनेंस मेकिंग पावर है जो बेसिकली 213 इज द राइट आंसर 213 बी ऑप्शन। इस तो बाद आ गया जी विच पार्ट ऑफ अवर कॉन्स्टिट्यूशन एनविसेज इज एज 3 टायर सिस्टम ऑफ पंचायत। बलवंत राय मेहता कमेटी पढ़ते हो अशोक मेहता कमेटी पढ़ते हो राइट। 2 टायर 3 टायर पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो राइट। सो वही है कि 3 टायर पंचायत जी आप रिकमेंडेशन पर आए हैं। सो यह किहड़े पार्ट दे विच आया गा सो यह पार्ट 9 दे विच आया पंचायती राज सिस्टम राइट। सो पार्ट 9 दे विच सो ये तुसीं याद रखना गा। पार्ट 10 याद रखो ट्राइबल एरिया दे नाल रिलेटेड है राइट। पार्ट 11 है जिहड़ा यह रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड सेंटर यूनियन एंड स्टेट दे विच जो रिलेशनस है। पार्ट 12 जिहड़ा फाइनांस हो गया तुहाडा रेवेन्यू वगैरह हो गया उहदे नाल रिलेटेड है राइट। चलो खैर तो तुसीं याद रखना इत्थे आंसर जो फिलहाल पार्ट 9 राइट। यानी कि 3 टायर सिस्टम ऑफ पंचायत जो आप पढ़ते हो पार्ट 9 के पार्ट पढ़ते हैं कि पढ़ने शेड्यूल पढ़ते हैं एक तो आप पार्ट पढ़ते हैं। ये तुसीं सारे पॉलिटी की क्लास मेरी देख सकते हो 3 पॉलिटी की क्लास है। एक तो मैं थ्योरी वाइज पढ़ाया हुआ एक मैं सिर्फ पॉलिटी के MCQ कराया हुआ एक पॉलिटी में सिर्फ पार्ट्स शेड्यूल आर्टिकल इंपॉर्टेंट करवाए हुए। सो वो वीडियो तुसीं देख सकते हो प्ले लिस्ट में जाके तुहानूं मिल जू पॉलिटी दी 4 क्लासा राइट हो गया। सो भाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज रिलेटेड टू द अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सौखा अमेंडमेंट किहड़ा गा 368 आर्टिकल है ठीक है। इस तो बाद आ गया जी आर्टिकल 300A। हुण याद करो फंडामेंटल राइट दे विच आर्टिकल यानी 19 है। आर्टिकल 19 दे विच तुहानूं फ्रीडम्स दित्तियां हुई हैं। फ्रीडम्स जिहड़ियां आपां पढ़दे हैं बेसिकली वो पढ़दे हैं 6 7 24 है। फंडामेंटल राइट भी आप 6 पढ़ते हैं ओरिजिनली 7 होंगे सी। राइट टू प्रॉपर्टी आर्टिकल 31 हो गया या 19 का एक F हो गया ये सारा कुछ तुसीं पढ़ते हो याद हो तुहाडे। आर्टिकल 31 जिहड़ा रिमूव कर दिता गया रिपील कर दिता गया बाद दे विच वो आर्टिकल 300A बनाया गया। 300A बनाया गया आर्टिकल नूं आपां की कहने लीगल राइट यानी जो राइट टू प्रॉपर्टी है तुहाडी वो हुण लीगल राइट है ना कि तुहाडा फंडामेंटल राइट है ठीक है। एंड कदों किया गया 44th अमेंडमेंट 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 के राही किया गया राइट है। एंड ये हुण की है भाई अच्छा पूछे आपां नूं आर्टिकल 300A की है ठीक है। राइट टू प्रॉपर्टी इज द राइट आंसर हो गया भाई। डैश इज इंपावर्ड टू ग्रांट पार्डन अंडर डैश ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया ठीक है। सो भाई देखो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया टू ग्रांट पार्डन अंडर नहीं प्रेजिडेंट कर देगा। प्रेजिडेंट हैव सम पार्डनिंग पावर्स सम की सारी हैं। आर्टिकल 72 यानी कि बी ऑप्शन। सो प्रेजिडेंट इज इंपावर्ड टू ग्रांट पार्डन अंडर 72 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 72 आर्टिकल दे विच। इस तो बाद आ गया हु डिसाइड वैदर अ बिल मनी बिल और नॉट यानी मनी बिल है या नहीं है कौन ये दसदा गा स्पीकर ऑफ द लोक सभा। सौखा गा मनी बिल राइट। मनी बिल के रिलेटेड आर्टिकल किहड़ा सीगा 110 बजट के रिलेटेड किहड़ा सीगा 112 ज्वाइंट सिटिंग रिलेटेड किहड़ा सीगा 109 108। वट इज द टर्म ऑफ द ऑफिस ऑफ द चेयरमैन एंड मैंबरस ऑफ द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। सो कितनी टर्म होंगी है 6 साल ते 65 ठीक है। प्रेजिडेंट द्वारा अपॉइंट किए जाते सो याद रखना 6 साल ते 65 साल दे विच जो मर्जी पहला आ जाए। द 4th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद विच ऑफ द फॉलोइंग सबजैक्ट मैटरस। 4th शेड्यूल की आप 12 के 12 शेड्यूल याद करने हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ठीक है। पहला शेड्यूल यूनियन ऑफ स्टेट्स सबनों पता है यूनियन ऑफ इंडिया राइट हो गया जी। दूसरे दे विच तुहानूं जिहड़ा मिल जूगा जी वो मिल जूगा अलाउंसिस प्रेजिडेंट गवर्नर सारे जिन्ने भी मंत्री है राइट अलाउंसिस
तीसरा शेड्यूल जिहड़ा तुहाडा हैगा भाई वो हैगा ओथ एफर्मेशन दे नाल सौं चुक समागम। चौथा जिहड़ा हैगा भाई तुहाडा वो हैगा गा जिहड़ा यानी कि फोर्थ आपां नूं बेसिकली पूछा गया एलोकेशन ऑफ सीट्स, एलोकेशन ऑफ सीट्स इन द राज्य सभा टू द स्टेट्स एंड द यूनियन टेरिटरी, राइट। यानी एलोकेशन ऑफ सीट्स चौथे दे विच हो गया, राइट। पंजवां एंड छेवां, छेवें दे विच याद रखनी तुसीं ममता। ममता मतलब की है मिजोरम मेघालय त्रिपुरा असम जो ट्राइबल एरिया, ममता इन्हां दे बारे स्पैशल लिखा होया, राइट। एंड पंजवां जिहड़ा शेड्यूल है ये ट्राइबल एरियाज है, ट्राइबल एरियाज एक्सैप्ट ममता, क्योंकि ममता का जिहड़ा स्पैशल प्रोविजन जिहड़ा दिता गया 6वें शेड्यूल दे विच आ, याद रखना मिजोरम मेघालय त्रिपुरा ते असम हो गया, राइट है ममता। इस तो बाद 6वां हो गया, 7वें दे विच तुहाडा आ जांदा गा स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट एंड कनकरेंट लिस्ट, यानी सूचियां आ जांदियां। 8वें दे विच तुहाडियां आ जांदियां लैंगुएज, 22 लैंगुएज, राइट है, ये तुसीं याद रखना गा। 9वें दे विच, 9वीं पहली गल तां 9वीं तुहाडी शेड्यूल ही जिहड़ा ऐड किया गया वो पहली अमेंडमेंट राही ऐड किया गया 1951 दे विच, ये याद रखना, राइट। 9वां जिहड़ा हैगा 9वां शेड्यूल ही ऐड किया गया पहली बार, क्योंकि ओरिजिनली अपने 8 सी, ओरिजिनली अपने 8 सी, 9वां किया गया पहली अमेंडमेंट राही 1951, ठीक है। 10वां पार्ट जिहड़ा तुहाडा शेड्यूल हो गया जिहड़ा तुहाडा वो एंटी डिफेक्शन लॉ हो गया, राइट। 11वां हो गया तुहाडा पंचायत दे नाल रिलेटेड। 12वां जिहड़ा हो गया भाई तुहाडा म्यूनसिपैलिटी दे नाल रिलेटेड, ठीक हो गया भाई। सो याद रखने हैं, पहला यूनियन ऑफ स्टेट्स हो गया, दूसरा अलाउंसेस हो गए तनख्वाह वगैरह, तीसरा ओथ हो गया, चौथा एलोकेशन ऑफ सीट्स हो गया, पांचवां ट्राइबल एरिया हो गया, 6वां ममता हो गया, 7वां सूचियां हो गई स्टेट लिस्ट कनकरेंट लिस्ट या यूनियन लिस्ट हो गया, 8वां 22 लैंगुएजेस हो गया, 9वीं पहली बार शेड्यूल ये ऐड किया गया जिहदे विच प्रॉपर्टी बारे भी है, एंटी डिफेक्शन लॉ 10वां हो गया, पंचायत हो गया, 12वां हो गया तुहाडा म्यूनसिपैलिटी। यानी ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ आंसर आ गया फोर्थ शेड्यूल एलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्य सभा। इस तो बाद आ गया द इंपीचमेंट ऑफ द प्रेजिडेंट इनिशिएटेड। मैं दस्सिया सीगा कि प्रेजिडेंट की जी इंपीचमेंट है आर्टिकल 61 राही, पहली गल, राइट, आर्टिकल 61 राही की जाती है। एंड इनिशिएट यानी स्टार्ट किते भी किया जा सकता है, आइदर हाउस ऑफ द पार्लीमेंट, पहली बार होगा 1/4, दूसरी बार होगा 2/3, राइट हो गया। द टेन्योर ऑफ एवरी पंचायत, द टेन्योर ऑफ एवरी पंचायत शैल बी फॉर 5 ईयर्स फ्रॉम द डेट। पंचायत के 5 साल की होंगी टेन्योर पीरियड, टाइम पीरियड। स्टार्ट कदों होगा, स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट मीटिंग, पहली मीटिंग तो ही स्टार्ट हो जाएगा। द 11th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड, हुण तां नहीं भुलदे भाई, 11वां ते 12वां दोनों याद रखना है। 11वां हैगा पंचायती राज दे नाल रिलेटेड ते 12वां जिहड़ा हैगा भाई वो म्यूनसिपैलिटी दे नाल रिलेटेड है, राइट हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अंडर द स्टेट लिस्ट, स्टेट लिस्ट के अंडर किहड़ा, ध्यान नाल सोचो, आंसर लाओ। बहुत ज़्यादा रौला अजकल पै रहा हैगा, हुण तां अपने लॉ जिहड़े हैगे रिपील कर दिते गए हैं। सो स्टेट लिस्ट है जी भाई एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर इज द स्टेट लिस्ट। द मैंबरस ऑफ द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन आर अपॉइंटेड बाय स्टेट है, जेकर यूनियन होंदा तां फिर यूनियन दे विच आ जांदा, बट जो स्टेट की गल हो रही है तो अपॉइंट किया होगा गवर्नर, बट ये यूनियन होवे तो फिर सेंटर लैवल पर कौन है, प्रेजिडेंट है। सो गवर्नर इज द राइट आंसर। अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम द पोजीशन ओनली ऑन द ग्राउंड्स ऑफ, यानी सुप्रीम कोर्ट के जज को सिर्फ रिमूव तां किया जा सकता जेकर वो प्रूव होवे कि वो मिसबिहेव कर रहा है, राइट है, या फिर इनकैपेसिटी यानी कि वो अनुकूल नहीं है आपकी पोस्ट के मुताबिक, राइट है, यानी काबिल नहीं है। प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी और जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट कैन बी रिमूव्ड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूनिटरी फीचर ऑफ द गवर्नमेंट, यूनिटरी फीचर का मतलब जिथे सेंटर स्ट्रोंग होंगी है या सेंटर ही होंगी है कली, राइट। वैसे अपना जो संविधान है वो की है, अपना क्वासी फैडरल है, क्वासी फैडरल है कि नहीं, जिथे आप कहने भी यूनियन तो सेंटर मिल जुल के काम कर दियाँ, यानी फैडरल का मतलब होंगे जड़ियाँ कि पावर्स बिटवीन जो है पावर डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट्स, राइट। सो क्वासी फैडरल है। बट जेकर यूनिटरी फीचर देखा जाए तो कितने देखेंगे, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं, ऑल इंडिया सर्विसिज, ऑल इंडिया सर्विसिज से, ऑल इंडिया सर्विसिज से की है यूनिटरी फीचर ऑफ द गवर्नमेंट अपन शो होंगे। डिवीजन ऑफ पावर
इंडिपेंडेंट जुडिशरी ये फैडरल स्ट्रक्चर है बेसिकली, राइट। बट ऑल इंडिया सर्विसेज इज़ अ यूनिटरी फीचर, ये याद रखना पैना। टैक्नीकल टर्म जिन्होंने पॉलिटी मेरे तो पढ़ रखी वो तो कर लैणगे, नहीं तो फिर भाई याद रखो। इन विच ईयर नैशनल फूड सिक्योरिटी वाज पासड, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता, नैशनल सिक्योरिटी फूड वाज पासड जोड़ा है भाई 2013 राइट। सो याद रखना बस एवें ही। हु वाज द प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया वैन एंटी डिफेक्शन बिल वाज पासड, एंटी डिफेक्शन लॉ आप पढ़ के हटे पार्ट 10। एंटी डिफेक्शन बिल जो पास होया सीगा तो उदों प्रेजिडेंट कौन सी, हुण याद रखो कि एंटी डिफेक्शन लॉ पहला आप पढ़ ही लिया, पहला क्वेश्चन आया कि किहड़ी अमेंडमेंट राही कीता गया, पढ़िया कि नहीं पढ़िया 52वां, नाल दी नाल मैं दस्सिया सीगा 1985 भी, तो जेकर 1985 याद रखे तो 1984 के दंगे भी याद होंगे। तो उस टाइम पर प्रेजिडेंट कौन सी, ज्ञानी जैल सिंह। सो ज्ञानी जैल सिंह इज़ द राइट आंसर, याद इस तरीके नाल करीदा। नैक्सट आ गया जी, इन द क्लासीफिकेशन ऑफ पावर इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एजुकेशन फॉल्स अंडर, एजुकेशन फॉल कितने कर दी, क्लासीफिकेशन ऑफ पावर इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एजुकेशन फॉल्स अंडर। सो एजुकेशन हुण एजुकेशन है, दिमाग लाओ भी ये सेंटर लिस्ट हो, स्टेट लिस्ट हो या कनकरेंट लिस्ट हो। ऑबवियस गल है कनकरेंट, यानी स्टेट तो सेंटर बोथ करनगे। सो कनकरेंट लिस्ट इज द राइट आंसर। हु डिसाइड्स द सैलरी एंड सर्विस कंडीशन ऑफ कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, कैग अपना होंगे, कैग की पोस्ट की जो सैलरी है या सर्विस कंडीशन जो भी है बेसिकली कौन डिस्कस करता, कौन कौन उन्होंने डिसाइड करता, पार्लीमेंट ही करोगी, राइट। विच ऑफ द फॉलोइंग एरिया इज फेमस फॉर आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, जिथे सब तो पहला स्टील इंडस्ट्री ओपन हुई है, कितने पहला जमशेदपुर, टाटा स्टील है ना, जमशेदपुर, जमशेद जी, चलो जमशेदपुर इज द राइट आंसर, फेमस फॉर आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पास थ्रू, हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तो पता होगा, पढ़ते होंगे, इन्ना तो पता होगा, धरती आ, लैटीट्यूड आ, लॉन्गटीट्यूड है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री, ठीक है, कैप्रिकॉर्न हो गया, पोल्स हो गया अपने नॉर्थ पोल साउथ पोल हो गया। सो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है जोड़ा अपना बेसिकली नॉर्थ जोड़ा हैगा नॉर्थ ईस्ट हैमीस्फीयर के विच अपने इंडिया लाई करता है। सो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है जी वो किहड़े पास नहीं करती, पहले तो यही याद होना चाहिए भी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास कितों करती है, पास अपनी 8 स्टेटों के करती है, 8 स्टेटों के करती है, किहड़े करती है, गुजरात नाल ही फिर तुहाडा राजस्थान है, फिर मध्य प्रदेश है, फिर छत्तीसगढ़, झारखंड, बंगाल, वैस्ट बंगाल, त्रिपुरा ते मिजोरम, राइट है। मैप राही याद कर लो, मैं वैसे बड़े बारी पढ़ाया हुआ है, ठीक है। सो ये याद रखें, ठीक है। गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, त्रिपुरा हो गया, मिजोरम हो गया, राइट है। सो इन्हों के विचों किहड़ा नहीं है, राजस्थान भी है, छत्तीसगढ़ भी है, मिजोरम भी है, उड़ीसा नहीं है। सो उड़ीसा इज द राइट आंसर, राइट है। जेकर आप इंडिया की जियोग्राफिकल लोकेशन देखनी हो, लैटीट्यूड, तो 8 डिग्री 4 मिनट 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ, 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। तो जे तुसी अपना लॉन्गटीट्यूड देखना हो तो फिर क्या आऊगा, 68 डिग्री 7 तो 97 डिग्री 25। सो याद रखने पे दोनों इंपॉर्टेंट है, 29 डिग्री का फासला है, इस करके 2 घंटे का फासला बन जाता 15-15 डिग्री के है ना, 15 डिग्री 1 घंटा। चलो खैर ज़्यादा टैक्नीकल चीज़ा पढ़िया होंगे तो पता लगता होगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट अमंग द वेस्ट फॉलोइंग रिवर्स, एक तो देखो सीधी जी गल अपने डेल्टा बनाई ईस्ट फॉलोइंग रिवर्स, यानी इधर नूं आउंदियां, ते कुछ रिवर्स आ जड़ियां अपनियां वेस्टर्न कन्नी वैसट साइड कन्नी आउंदियां, तो उन्होंने विच लॉन्गेस्ट है जी किहड़ी है भाई, नर्मदा। सो याद रखना नर्मदा रिवर, नर्मदा रिवर नूं रेवा रिवर भी कहा जाता है, रेवा 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 लॉन्गेस्ट वैस्ट फॉलोइंग रिवर। इस तो बाद आ गया जी धुआंधार वाटरफॉल, धुआंधार धुआंधार जिहड़ा हैगा वाटरफॉल इज लोकेटेड एट,
ठीक है। धुआंधार वाटरफॉल लोकेटेड एट, ये कितने भाई नर्मदा रिवर ते ही है, ठीक है, नर्मदा रिवर। इन विच स्टेट ऑफ इंडिया डज द मना पास लोकेटेड, मना पास बहुत बार पढ़े आप है, मना पास लोकेटेड, मना पास लोकेटेड है जोड़ा भाई कितने है, उत्तराखंड, उत्तराखंड मना पास। याद रखना मना पास का नाम एक होर भी है चिरबित्या पास, ठीक है। नैक्सट आ गया दिल्ली इज लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ विच रिवर। सो दिल्ली भाई दिल्ली जेकर जाने हो बस से जाने हो तो तुम्हें दिखता ही होगा राह पास कर दी उतों की यमुना, कितने भी जाने तुम यमुना, ठीक है। दिल्ली इज द लोकेटेड बैंक केड़ी है यमुना के नेड़े, ठीक है। बनसागर डैम, बनसागर डैम इज बिल्ट ऑन विच रिवर, महानदी कृष्णा सोन या फिर श्रावस्ती, सोन, सोन रिवर, राइट है। याद रखना सोन रिवर तो हैगी जी बाणसागर डैम। महानदी से बहुत इंपॉर्टेंट डैम बनता है हीराकुंड, हीराकुंड याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कृष्णा ते भी बहुत इंपॉर्टेंट बनता है नाग अर्जुन सागर, राइट। सोन ते बनता बाणसागर डैम, ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। नैक्सट आ गया जी विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ खरीफ क्रॉप, खरीफ हो गया, रबी हो गया, जायद हो गया, सो ये तुसी याद रख सकते हो। सो खरीफ क्रॉप केड़ी है भाई, वीट हो गया, मेज हो गया, एलमंड हो गया, वाटरमेलन हो गया, मेज इज द राइट आंसर, ठीक है। चलो कॉटन इज बेस्ट ग्रोन ऑन ब्लैक लावा सॉइल्स, ऑब्वियस गल है, ब्लैक लावा सॉइल्स, ब्लैक सॉइल्स बेसिकली जो कॉटन है वो ज़्यादा सूटेबल है, राइट है। उसनों की कहने आप रेगर, ये एग्रीकल्चर के आते होंगे क्वेश्चन, हालांकि पूछे जा सकते हैं, रेगुर इज द राइट आंसर। इस तो बाद आ गया जी वेयर इज अ सस्तम कोटा लेक, सस्तम कोटा लेक है जी आल्सो नोन फॉर एज अ क्वीन ऑफ लेक्स लोकेटेड इन इंडिया, सस्तम लोका, ठीक है। सो क्वीन ऑफ लेक्स है, सो बेसिकली यह कितने भाई गुजरात है, केरला, कर्नाटका, महाराष्ट्र, सो केरला इज द राइट आंसर। केरला हो गया तो फिर कथकली हो जाऊगा, कथकली हो गया तो फिर मोहनी अत्यम हो जाऊगा, मोहनी अत्यम, बस एवं याद रखिए नाल, ठीक है। क्वीन ऑफ लेक्स। इस तो बाद आ गया जी कल्प सूत्रा, कल्प सूत्रा इज टेक्स्ट रिलेटेड टू जैनिज्म, ठीक है। कल्प सूत्र इज टेक्स्ट रिलेटेड टू जैनिज्म, इट्स रिटन बाय भद्रबहु, चाणक्य, सूरदास या फिर चंद्रगुप्त, ठीक है। कल्प सूत्र इज टेक्स्ट रिलेटेड टू जैनिज्म, इट इज रिटन बाय भद्रबहु, राइट। यही जैनिज्म के लेके गया सी बेसिकली, है ना, भद्रबहु इज द राइट आंसर। इस तो बाद आ गया द फेमस हड़प्पन साइट ऑफ लोथल, बहुत इंपॉर्टेंट है, लोथल कितने रिलेटेड है भाई, गुजरात, है ना, सौखा ही है। लोथल, लोथल केड़ी रिवर को है, बुगावा, राइट हो गया। इतने मिलता की होंगे डॉक यार्ड, समुद्री जहाज इतने खड़ते हैं, राइट हो गया। किहदे द्वारा फाउंड किया गया, SR राव। बस ये चीज़ें याद रखने लिए, फेमस हड़प्पन साइट ऑफ लोथल, गुजरात इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग सिविलाइजेशन इन सिंधु वाज नोन एज पाइल ऑफ डेड, या फिर माउंड ऑफ डेड भी कहा जाता है, राइट। माउंड ऑफ डेड भी कहा जाता, पाइल ऑफ डेड भी कहा जाता है। देखी होगी ऋतिक रोशन की मूवी मोहनजोदाड़ो, ठीक है, माउंट ऑफ डेड। इस तो बाद आ गया जी हु स्टार्टेड दीन इलाही, दीन इलाही किहदे द्वारा फाउंड किया गया, अकबर। सारिया डिटेलां पढ़िया हुई भाई, दीन इलाही अकबर द्वारा। इस तो बाद आ गया द मॉरियन पिलर कैपिटल ऑल्सो नोन एज द लाइन कैपिटल, नाल ही लाइन कैपिटल दे बोला जाता, पटना, उज्जैन, चलो सारनाथ, लाइन कैपिटल सारनाथ, है ना, सारनाथ। नैक्सट आ गया हु इज द फाउंडर ऑफ लोधी डायनेस्टी, किन्नी डिटेल च पढ़ाया होया, पंजाब जीके च भी पढ़ाया, वैसे भी आप पढ़िया होया। सो लोधी डायनेस्टी के फाउंडर कौन है, संस्थापक कौन है, कौन बड़ेगा करोड़पति के क्वेश्चन आया होया। सो भाई ये आ गया बहलोल लोधी,
बहलोल लोधी तो बाद कौन है भला? सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी का ओरिजिनल नेम पूछा जाता होंगे भला? प्रिंस निजाम। केड़ी सिटी फाउंड की सी? आगरा। सिकंदर लोधी तो बाद इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी की लड़ाई किहदे नाल हुई सी? बाबर दे नाल। केड़ी लड़ाई हुई सी? फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत कदों हुई सी? 1526 दे विच। बाबर ने पंजाब ते हमले किए, 5 हमले किए, 1519, 1519, 1520, 1524, 1525। चलो खैर ठीक है। सो बहलोल लोधी इज द राइट आंसर, फाउंडर ऑफ द लोधी डायनेस्टी। हु अमंग द फॉलोइंग बिल्ट द सिटी ऑफ तुगलकाबाद? तुगलका दे जो सिटी दे यानी कि जिद कोल द्वारा बने तुगलक खान मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, ग्यासुद्दीन तुगलक। ग्यासुद्दीन तुगलक द्वारा तुगलकाबाद बनाया गया। ग्यासुद्दीन तुगलक दा मुंडा मोहम्मद बिन तुगलक। ग्यासुद्दीन तुगलक इज द राइट आंसर। द लास्ट किंग ऑफ द मौर्यन डायनेस्टी, सब तो सौखा, बहुत ही सौखा। बिंदुसार, दशरथ, दनानंद या फिर बृहदरथ? बृहदरथ इज द राइट आंसर, लास्ट किंग ऑफ मॉडर्न डायनेस्टी। एंड बृहदरथ नूं मारिया गया सीगा, असैसीनेट किया गया सी, असैसीनेटेड बाय पुष्या मित्र सुंग। पुष्या मित्र सुंग, पुष्या मित्र सुंग, पुष्या मित्र सुंग, पुष्या मित्र सुंग, पुष्या मित्र सुंग। एंड इस तो बाद फिर सुंग डायनेस्टी की स्थापना हुई सी। राइट, बृहदरथ। नेक्स्ट आ गया इब्न बतूता। इब्न बतूता वेंट टू चाइना। इब्न बतूता वेंट टू चाइना एज द एनवॉय ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ द दिल्ली सुल्तान्स? इब्न बतूता सो मुहम्मद बिन तुगलक दे ड्यूरिंग टाइम ते। ठीक है। इब्न बतूता मोरक्को याद रख लो नाल, ते पंजाब दे नाल रिलेटेड याद रख लो बठिंडा, जिहदा रेफरेंस इब्न बतूता ने दिता सी। राइट। सो इब्न बतूता टू चाइना एज द एनवॉय ऑफ मुहम्मद बिन तुगलक। इस तो बाद आ गया यानी वह अंबैसडर बन के गया। ड्यूरिंग अकबरज रेन इबादत खाना वाज यूज्ड एज। इबादत घर, इबादत करने दे नाल गल बनती है, इबादत करनी पैंदी। सो इबादत बेसिकली की आ प्लेस फॉर रिलीजियस डिबेट्स, डिस्कशनस जिथे रिलीजियस होंदियां सी। सो ये अकबर दे टाइम ते सीगा इबादत खाना। इस तो बाद आ गया जी विच ऑफ द फॉलोइंग किंग वाज गिवन एज द टाइटल ऑफ विक्रम आदित्य? विक्रम आदित्य, विक्रमादित्य जो शाकाज नूं हराता उस तो बाद कहा जान लग्या विक्रमादित्य। किनू? चंद्रगुप्त टू नूं, चंद्रगुप्त टू, विक्रमादित्य। इस तो बाद आ गया जी हु वाज द फर्स्ट स्लेव रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत? हु वाज द फर्स्ट स्लेव रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत? दिल्ली सल्तनत 1206 तो लैके 1210। कौन रहा? कुतुबुद्दीन ऐबक। पोलो खेडदा डग्या सी, इसकी डेथ हो गई सी। राइट, स्लेव डायनेस्टी। ठीक है। लो भाई 100वां क्वेश्चन, वेयर वाज द थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल? थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल कितने हुई है? सो फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल राजगृहा, सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल वैशाली, थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल पाटलिपुत्र, फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल कश्मीर। राइट होगा। सो यदा जो अपना थर्ड पूछा, थर्ड इज द राइट आंसर, यानी कि पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र इज द राइट आंसर, याद रह जाऊगा। किंग अशोका। ठीक है। चलो मोगली पुट्टा, चलो ये उन्होंने नाम सुने होंगे जिन्होंने पढ़िया होगा। ठीक हो गया। थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल पाटलिपुत्र। ठीक हो गया भाई। 101वां क्वेश्चन, हु वाज कॉल्ड एज द फादर ऑफ मॉडर्न करेंसी ड्यूरिंग द मुगल पीरियड? मॉडर्न करेंसी ड्यूरिंग द मुगल पीरियड। तो यदा भाई शेरशाह सूरी। जेकर याद होवे तुहाडे कि पहला बाबर सीगा 1526 तो लैके 1530 तक। राइट, पानीपत की लड़ाई हुई है, फर्स्ट बैटल पानीपत, खंडवा, फलाना त्यों का। राइट। सो उस तो बाद फिर हुमायूं आया। राइट, पर हुमायूं नूं शेरशाह सूरी ने हराता सी। फिर सूरी डायनेस्टी आई सी, यानी एक बारी जिहड़ा मुगल पीरियड सीगा वो खत्म हो गया सीगा। बट हाँ
क्योंकि उस तो बाद भी मुगल पीरियड कंटिन्यू रहा, इस करके आप ओवरऑल बाबर तो ही गिणांगे, क्योंकि मुगल पीरियड तो फिर आ गया सी जो शेरशाह सूरी सूरी डायनेस्टी बेसिकली खत्म हो गई, हुमायूं दोबारा फिर आ गया सी 1555 राइट। सो बेसिकली ड्यूरिंग द मुगल पीरियड शेरशाह सूरी ने मॉडर्न करंसी जी हैगी एस्टैबलिश की सी, जी टांका नहीं सी, टांका उन्होंने रुपया इंट्रोड्यूस किने किया सी, बाय शेरशाह सूरी। सो इस करके फादर ऑफ मॉडर्न करंसी ड्यूरिंग द मुगल पीरियड कहा जाता है, शेरशाह सूरी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वर्क ऑफ कालीदास, कालीदास का इन्होंने वर्क किहड़ा नहीं हैगा, ठीक है। कुमार संभव, मेघदूत, विक्रम जिहड़ा हैगा तुहाडा विक्रम वसी, हालांकि इत्थे तुसी होर भी याद रख सकते हो, एक तुहाडा जिहड़ा हैगा कामसूत्रा बेसिकली इहदा नहीं हैगा, कामसूत्र, रघुवंशा भी याद रख सकते हो, ठीक है। चलो खैर, तो बेसिकली कामसूत्र इहदा नहीं हैगा, कामसूत्र फिर किहदा हैगा, स्पेलिंग थोड़े जे देख लो, वत्स्याना, वत्स्याना आई जी स्पेलिंग है, वत्स्याना कामसूत्र, ठीक हो गया, वेरी गुड। हु अमंग द फॉलोइंग वर प्रोमिनेंट लीडर्स ऑफ द खिलाफत मूवमेंट, प्रोमिनेंट लीडर्स ऑफ द खिलाफत मूवमेंट, खिलाफत मूवमेंट 1919 नाल नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट भी याद होगी, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ने सपोर्ट किया सी खिलाफत मूवमेंट नूं, एंड खिलाफत मूवमेंट के लीडर जिहड़े उभरते सीगे कौन सी, अली ब्रदर्स, एंड इन्हां दे क्वेश्चन पूछे गए वार वार, नाम मौलाना मुहम्मद अली एंड शौकत अली, खिलाफत मूवमेंट 1919, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट बाय महात्मा गांधी, ठीक है। विच प्लेस डिड कुंवर सिंह अ लीडर ड्यूरिंग द रिवॉल्ट ऑफ 1857, 1857 का विद्रोह सबनों याद होगा, मंगल पांडे द्वारा स्टार्ट किया गया 34वीं बटालियन, है ना। सो विच प्लेस डिड कुंवर सिंह ए लीडर ड्यूरिंग द रिवॉल्ट ऑफ 1857, सो कुंवर सिंह सीगे बिहार, बिहार इज द राइट आंसर, याद रखना। इस तो बाद आ गया जी, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट इज कॉल्ड मॉन्टेग चैम्सफोर्ड रिफॉर्म, सो मॉन्टेग चैम्सफोर्ड रिफॉर्म 1919 बाई कैमरलिज्म लेके आया, बाई कैमरलिज्म लेके आया, डायरकी लेके आया, राइट। सो मॉन्टेग चैम्सफोर्ड रिफॉर्म, रॉयल एक्ट भी आप 1919 पढ़ते हैं। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1919, ठीक है। अगस्त ऑफर याद रख लो 1940 है, 1909 मॉरलेमेंट रिफॉर्म है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935। चलो, सत्याशोधक समाज वाज फाउंडेड बाय, सत्याशोधक समाज किहदे द्वारा फाउंड किया गया, बहुत बार पूछा जाता है। सत्याशोधक वाज फाउंडेड बाय ज्योतिबाई फूले, इस तो बाद आ गया द फर्स्ट न्यूज़पेपर पब्लिश्ड इन इंडिया, पहली बार पब्लिक दे विच इंट्रोड्यूस किया गया 1780 दे विच किया गया, केड़ा, बंगाल गैजेट, सौखा गा, बंगाल गैजेट 1780। हु वाज द प्रेजिडेंट ऑफ कांग्रेस सैशन ऑफ 1924 हेल्ड इन बेलगांव, बेलगांव दे विच पहली बार सैशन लग्या, एंड सिर्फ इक्को बारी ही सैशन के प्रेजिडेंट रहे कौन, महात्मा गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी, सिर्फ इक्को एक बार 1924। इस तो बाद 25 दे विच फिर सरोजनी नायडू सी, उस तो बाद 1917 दे विच एनी बेसेंट द फर्स्ट फीमेल प्रेजिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, जेकर पहली इंडियन देखी जाए तो फिर सरोजनी नायडू है, ओवरऑल देखा जाए तो फिर एनी बेसेंट, ठीक है। 1916 दे विच लखनऊ सैशन सीगा, जिहदे विच बेसिकली पैक्ट होया दोबारा तो मुस्लिम एंड हिंदू जो है जां एक्सट्रीमिस्ट ते मॉडरेस्ट दोबारा मिल गए। 1907 दे विच सूरत स्पलिट होया सीगा, तां याद रख लो। 1905 दे विच बंगाल पार्टीशन हुई सी, जिहड़ी कि कैंसल 1911 दे विच हो गई सी दिल्ली दरबार, राइट। यह चीज़ां इंपॉर्टेंट बनते। 1885 दे विच एस्टैबलिशमेंट हुई INC दी बाय A.O. ह्यूम, 1885, 86, 87 बॉम्बे कलकत्ता मद्रास, याद रख लो। चलो ठीक हो गया। द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, सो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड वेलेस्ले, लॉर्ड क्लाइव, वॉर्न हेस्टिंग,
1773 रेगुलेटिंग एक्ट, 1784 पिट्स इंडिया एक्ट, राइट। चलो खैर, तो फर्स्ट गवर्नर जनरल बंगाल वॉरेन हेस्टिंग, इस तो पहले लॉर्ड क्लाइव। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी वाज फाउंडेड बाय, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी जिन्हें एजुकेशन को प्रमोट किया, कहा भाई कि आपां गुलाम है, किने द पोलिटिकल गुरु ऑफ महात्मा गांधी गोपाल कृष्ण गोखले। सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी 1905 ਦੇ ਵਿੱਚ बनाई गई सी, सो याद रखना। नैक्सट आ गया द क्विट इंडिया कंपेन, द क्विट इंडिया कंपेन वाज लॉन्च्ड बाय द कांग्रेस आफ्टर द फेल्यूर ऑफ, 1942 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਪਸ ਮਿਸ਼ਨ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੁਆਰਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਪੋਸਟ ਡੇਟਡ ਚੈੱਕ, ਪੋਸਟ ਡੇਟਡ ਚੈੱਕ, ਰਾਈਟ। ਇਹਦੇ ਫੇਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕ੍ਰਿਪਸ ਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਇਟ ਇੰਡੀਆ ਮੂਵਮੈਂਟ, ਭਾਰਤ ਛੋੜੋ ਅੰਦੋਲਨ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੁਆਰਾ ਡੂ ਔਰ ਡਾਈ ਦਾ ਨਾਰਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਕ੍ਰਿਪਸ ਮਿਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਫੇਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਦ ਬਾਉਂਡਰੀ ਬਿਟਵੀਨ ਇੰਡੀਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਇੰਡੀਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਬਾਉਂਡਰੀ ਆ ਰੈੱਡ ਕਲਿਫ ਲਾਈਨ, ਸੀਰੀਅਲ ਰੈੱਡ ਕਲਿਫ ਲਾਈਨ। ਮੈਕਮੋਨ ਹੋ ਗਿਆ ਇੰਡੀਆ ਚਾਈਨਾ। ਦ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਅੰਦੋਲਨ ਵਾਜ ਸਟਾਰਟਡ ਇਨ ਦਾ ਈਅਰ, ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਅੰਦੋਲਨ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ 1905 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸਿਕਲੀ 1905 1911 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦ ਗਾਂਧੀ ਇਰਵਨ ਪੈਕਟ, ਜਦੋਂ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਇਰਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਬੇਸਿਕਲੀ, ਰਾਈਟ। ਤਾਂ ਗਾਂਧੀ ਇਰਵਨ ਪੈਕਟ ਜਦੋਂ ਰਾਊਂਡ ਟੇਬਲ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਯਾਦ ਹੋ 1929 31, ਰਾਈਟ। ਗਾਂਧੀ ਇਰਵਨ ਪੈਕਟ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਪੈਕਟ ਹੋਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ? ਦਿੱਲੀ ਪੈਕਟ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ, ਦਿੱਲੀ ਪੈਕਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ। ਹੂ ਵਾਜ਼ ਦਾ ਫਸਟ ਟੂ ਗਿਵ ਦ ਕਾਲ ਫॉर ਸਵਰਾਜ ਇੰਡੀਆ ਫॉर ਇੰਡੀਅਨਸ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਵਰਾਜ ਨਾਮ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਪੂਰਨ ਸਵਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ, ਪੂਰਨ ਸਵਰਾਜ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਪੂਰਨ ਸਵਰਾਜ ਤਾਂ ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ? ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ 1929 30 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਲਾਹੌਰ ਸੈਸ਼ਨ ਲੱਗਦਾ ਗਾ, ਪੂਰਨ ਸਵਰਾਜ ਦੀ ਮੰਗ ਹੋਈ ਆ, ਰਾਈਟ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਵਰਾਜ ਇੰਡੀਆ ਫॉर ਇੰਡੀਅਨਸ, ਇਹ ਕਿਹਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ? ਦਇਆਨੰਦ ਸਰਸਵਤੀ ਦੁਆਰਾ, ਦਇਆਨੰਦ ਸਰਸਵਤੀ ਦੁਆਰਾ 1876 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਬੈਕ ਟੂ ਵੇਦਾਸ, ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਰਾਈਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਦਇਆਨੰਦ ਸਰਸਵਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਹੂ ਵਾਜ਼ ਦਾ ਨਵਾਬ ਆਫ ਬੰਗਾਲ ਐਟ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਫ ਬੈਟਲ ਆਫ ਬਕਸਰ, ਬੈਟਲ ਆਫ ਬਕਸਰ 1764 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ। ਬੈਟਲ ਆਫ ਪਲਾਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਊਗਾ 1757, ਠੀਕ ਹੈ। ਬੈਟਲ ਆਫ ਵਾਂਡੀਵਾ 1760, 1764 ਬੈਟਲ ਆਫ ਬਕਸਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਰਾਈਟ। ਜਿਹਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੀਟੀ ਆਫ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਜਣੇ ਸੀਗੇ, ਨਵਾਬ ਆਫ ਅਵਧ ਸੀ, ਨਵਾਬ ਆਫ ਬੰਗਾਲ ਸੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਗਲ ਇੰਪਾਇਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਨਵਾਬ ਆਫ ਬੰਗਾਲ ਕੌਣ ਸੀ? ਤਾਂ ਸਿਰਾਜੁद्दौला ਸ਼ਾਹਜੁद्दौला ਜੇਕਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਨਵਾਬ ਆਫ ਅਵਧ ਸੀ ਇਹ, ਨਵਾਬ ਆਫ ਬੰਗਾਲ ਸੀਗਾ ਮੀਰ ਕਾਸਮ, ਐਂਡ ਸ਼ਾਹ ਆਲਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕੌਣ ਸੀਗਾ? ਮੁਗਲ ਇੰਪਾਇਰ। ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾਤਾ ਸੀਗਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਨਵਾਬ ਆਫ ਬੰਗਾਲ 1764, ਨਵਾਬ ਆਫ ਬੰਗਾਲ ਮੀਰ ਕਾਸਮ, ਓਕੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਗਿਆ ਇੰਡੀਆਜ਼ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੌਂਗ ਵਾਜ਼ ਅ ਪਾਰਟ ਆਫ ਬੰਕਿਮ ਚੰਦਰ ਚੈਟਰਜੀਜ਼ ਨਾਵਲ। ਇੰਡੀਆ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੌਂਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਬੰਦੇ ਮਾਤਰਮ ਹੈ, ਸੋ ਉਹ ਬੰਕਿਮ ਚੰਦਰ ਚਟੋਪਾਧਿਆਏ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਚੈਟਰਜੀ ਦੁਆਰਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਵਲ ਸੀਗਾ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀਗਾ ਆਨੰਦ ਮਠ। ਫਸਟ 2 ਸਟੈਂਜੇ ਚੱਕੇ ਗਏ ਆ, ਰਾਈਟ। ਆਨੰਦ ਮਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਇੰਡੀਆਜ਼ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੌਂਗ, ਓਕੇ ਹੋ ਗਿਆ। 1986 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਗਾਇਆ ਗਿਆ, ਕਿਹੜਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸੀਗਾ? ਕਲਕੱਤਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਓ ਹੋ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਅਬ ਸੋ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗੇ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 120 30 ਕੁਐਸਚਨ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣਗੇ, ਰਾਈਟ। ਚਲੋ ਖੈਰ, ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰਹੂੰਗਾ। ਨਵਾਂ ਸਟੂਡੀਓ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸ਼ਿਫਟਿੰਗ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਚੱਕਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਟਾਈਮ ਲੱਗਿਆ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਸਿਲੇਬਸ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਹੀ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਸਿਲੇਬਸ ਆ ਗਿਆ, ਪੇਪਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆ ਜਾਊਗਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਲੱਗੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੁਐਸਚਨ ਬਹੁਤ ਕਰਵਾਊਂਗਾ। ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰ ਲਓ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੋਰਸਿਸ ਉੱਥੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੀਗੇ ਹੁਣ ਵੀ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਹੁਣ YouTube ਤੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰਹਾਂਗੇ। ਸੋ ਕੋਰਸਿਸ ਜ਼ਰੂਰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੈਥ ਦਾ ਕੋਰਸ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ GK ਦਾ ਕੋਰਸ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਦਾ ਕੋਰਸ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਬਾਕੀ ਕੋਰਸ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਨਵੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਬਾਏ ਬਾਏ, ਟੇਕ ਕੇਅਰ। ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੈਕਸਿਮਮ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਰਹਿਣ। ਬਾਏ ਬਾਏ, ਟੇਕ ਕੇਅਰ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਬਾਬਾ ਮਿਹਰ ਕਰੇ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਚ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ।